Good afternoon, everyone. I'm Akanksha. I'm from the HR department of Learnomet Technologies, and today we have a special guest with us, Jitendra. He's one of our students from the July batch, and today he's going to tell you about his journey, how he cracked his interview with the L1 position in Outworks. So, Jitendra, could you please turn on your mic so you can tell everyone about your journey, how you cracked your interview, and how was your experience? Okay, ma'am. Yeah. Hi, hello, everyone. Good afternoon. My name is Jitendra Salunke. I'm basically from Karad, Satara. Uh, Currently, I am working with Outworks. Their client is Kendall HMCL, which is a company located in Gurgaon location. I have done my Oracle DBA course in July afternoon batch. Uh, Ankush sir trained us very, uh, very good manner, and our Learnomet team also support us to uh, crack this crack this greatest opportunity. So it's very difficult to get a job for uh, freshers, but yeah, I did this with the help of Ankush sir, our Learnovet team, and also some students. They are with who they are um, did the course with me. So that's all about me. Uh, then anyone want to ask the question about that they have? You can ask in Hindi and also English. No matter. Um, Firstly, Hello. Jitendra, could you please tell about everyone, like how was your interview and what type of question were asked to you? Like how Okay. many interviews you Okay. have given? Actually, I'm going through a lot of interviews. So I just apply this job on the Outworks website, and also I applied on Naukri. So I had a call before the my first round was, I guess, first Feb. Then they scheduled my interview in 2 days, and my first round was on virtual. So the interview questions are not that hard. So I cracked that easily. But some view tables they ask, so I don't know about that. So I tell that I don't know about that. So they told me that okay, don't know, no issue. Uh, we will uh, we will let you know to second round. Then I was thinking that they will not select me because um, some uh, some things are that I can't answerable. But they Hello, called me for after 2 days. Hello. जितेंद्र हिंदीत वेट वेट सांग ना. वेट I अच्छा हिंदीत सांगू ठीक आहे काही प्रॉब्लेम नाही. तर सांग. ओके. ठीक है. तर फर्स्ट फर्स्ट क्या हुआ था कि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट पेप को हुआ था. फिर उसके बाद उन्होंने मेरा पहला जो राउंड हुआ था मतलब कॉल पे हुआ था एचआर के साथ. उन्होंने बोला मुझे कि अ, आपका कॉल 2 दिन में इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा. तो मेरा फर्स्ट राउंड जब हुआ था तब मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मुझे मतलब सेकेंड राउंड के लिए हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इतने मतलब हार्ड भी नहीं थे. बट क्योंकि सपोज अगर उन्होंने कुछ ऐसा पूछा कि तुमने इंटर्नशिप किया है तो क्या किया है, उसमें क्या किया है, तो ये सब चीजें थी. तो हमने आप सभी को पता है कि हमने कोर्स किया है, उसके बाद हमने प्रैक्टिस वगैरह सब किया हुआ है. तो ये सब चीजें हमें थोड़ा सा बतानी पड़ती है. थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है लेकिन सबको बताना थोड़ा जरूरी लग रहा है मुझे कि हम जो जो काम नहीं भी किया है वो हमें बताना आना चाहिए कि मैंने किया हुआ है. उस टाइप से उनके आगे के क्वेश्चन रहते हैं. तो मैंने वैसे किया था. तो एक एक टाइम पे मैं गड़बड़ किया हुआ था फर्स्ट राउंड में, इसलिए मुझे लगा नहीं आएगा. लेकिन सेकेंड टाइम कॉल आ गया. फिर मेरा एक मैनेजर लेवल के साथ और एक जो डीबीए थे वहाँ के, उन दोनों के साथ इंटरव्यू हुआ मेरा. फिर मुझे उन्होंने मतलब जो मैंने रिज्यूम में डाला था एक्चुअली उसमें मैंने ट्रेनिंग का नहीं डाला था. लेकिन मैं स्टार्टिंग में बोलते टाइम पे बोल गया गलती से कि मैंने एसक्यूएल ट्यूनिंग का पढ़ा हुआ है. तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैं ज़्यादा आंसर कर नहीं पाया. तो मैम ने बोला था कि
वो उनको तो लेना ही था एक्चुअली, सेकंड राउंड लिया था, तो मुझे बाद में पता चला कि उनको मतलब फ्रेशर ही चाहिए था। देन उनको थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट बंदा चाहिए था जिसको एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट पता होगी। तो उसके हिसाब से उन्होंने सेकंड राउंड लिया। बहुत सारे थोड़े एडवांस के क्वेश्चन पूछे थे, लाइक क्रॉन टाइप के जॉब्स कैसे रहते हैं, फिर सेल्स स्क्रिप्ट कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत पता थी, मैंने जितना पता था उनको बता दिया। जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह देख के मेरा सिलेक्शन कंफर्म कर दिया उसी दिन। फिर फिफ्थ फिफ्थ को जो मेरा सेकंड राउंड हुआ था उसी दिन उन्होंने बोला कि आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। तो मैं तो महाराष्ट्र में पुणे में था, मुझे डिफिकल्ट था, फिर भी मैंने बोल दिया कि अगर मुझे ऑफर लेटर सेम डे मिलता है, मतलब फिफ्थ फिफ्थ को, तो मैं कुछ भी करके मंडे को ज्वाइन हो जाऊंगा। तो वो जो 5 दिन की जर्नी थी बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत हेडक मुझे हुआ था, लेकिन क्या है, फ्रेशर है तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। ये मुझे सबको बताना है कि आपको स्टार्टिंग में अगर जॉब चाहिए, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो जैसी भी हो, जहाँ भी हो, जितने भी सैलरी में हो, कर लो। कुछ दिन दिक्कत होगी लेकिन हो जाएगा 100%। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ, तो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है अगर कुछ। आपका एप्टीट्यूड भी राउंड लिया था क्या? नहीं नहीं, एप्टीट्यूड नहीं हुआ था एक्चुअली। एप्टीट्यूड की जगह पे एचआर का कॉल, टेलीफोनिक कॉल हुआ था। उसके हम्म, उसपे उसने बहुत 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। मतलब आर्मैन बैकअप के बारे में पूछा, लॉजिकल बैकअप के बारे में पूछा, मतलब कैसे लेते हैं, क्या स्टेप्स है। फिर हम्म। आर्किटेक्चर के बारे में पूछे थे 2-4 क्वेश्चन, ऐसे मतलब 6-7 क्वेश्चन पूछे। और उन्होंने मेरा फर्स्ट राउंड सिलेक्ट कर दिया। सब वर्चुअली था यहाँ पे। हाँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन पूछते हैं? जस्ट लाइक कोई हाँ इशू आ प्रैक्टिकल। गया तो। हम्म, हाँ प्रैक्टिकल भी पूछते हैं, लेकिन फ्रेशर को कैसा है ना, अगर आपने इंटर्नशिप किया हुआ है ऐसा अगर आप बता रहे हो ना, तो हम्म, समझ लो वो कंसिडर करते हैं कि आपने काम किया हुआ है डेटाबेस पे। लेकिन उनको ये भी पता होता है कि आपने काम किया है, मतलब आपको एक्चुअल मतलब प्रोडक्शन पे वगैरह, या फिर जो एक्चुअल डेटाबेस है वो डायरेक्टली हम मतलब हमको नहीं दिया जाता है। तो हमें पहले मॉनिटरिंग का वगैरह काम दिया जाता है, या फिर कुछ टिकट्स वगैरह रिजॉल्व करने दिए जाते हैं, या फिर कुछ बेसिक कमांड्स हम करते हैं, कुछ मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये चीज़ें पूछते हैं। तो ये चीज़ें हमें हम्म। पहले से मतलब कहीं से ना कहीं से तो हम निकालने पड़ते हैं। अगर पहले अगर काम किया होगा आपने, मतलब एक्सपीरियंस वाले होगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है वैसे। लेकिन अगर फ्रेशर हो, अगर आप कुछ इंटर्नशिप वगैरह किया हुआ है, या फिर आपने कुछ छोटा मोटा कुछ किसी से जो एक वर्किंग है उससे एक्सपीरियंस लिया है, तो थोड़ा इजी जाता है बताने के लिए कि मैंने ये काम किया है, वो काम किया है। लेकिन वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं फिर बाद में, कि अगर समझ लो ओके। मेरा कंट्रोल फाइल करप्ट हो गया, तो क्या करेंगे, तो बोल सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग है। लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग में भी जो करप्ट, हाँ, वो कंट्रोल फाइल करप्ट हो गई, तो आप डेटाबेस को स्टार्ट कैसे करोगे। तो उस टाइम पे भी ऐसे मतलब सिनेरियो क्वेश्चन आते हैं, जो कि मुझे थोड़ा बहुत पता था, इसलिए मैंने बता दिया कि जो कंट्रोल फाइल रहती है, अगर अलर्ट लॉग में हम जाए, तो अलर्ट लॉग में हमारा एसपी फाइल का भी डिटेल्स पड़ा होता है, क्योंकि जब हम डेटाबेस स्टार्ट करते हैं तो अलर्ट लॉग फाइल में कंट्रोल फाइल के जो पैरामीटर्स रहते हैं, सॉरी, एसपी फाइल के पैरामीटर्स आते हैं, और कंट्रोल फाइल की भी डिटेल्स आती है, लोकेशन वगैरह, तो वहां से हम कॉपी करके कंट्रोल फाइल बना सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा L2 L3 वालों का काम है, मतलब L1 को काम नहीं दिया जाता है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, कि इससे क्या होता है ना, सामने वालों को पता चलता है कि भाई तुम कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो तुम्हें आता है। लेकिन अगर तुमने किया नहीं है, फिर भी तुम आओगे प्रोडक्शन पे या फिर सर्विस बेस पे, कहीं पे भी आप जाओगे तो कर लोगे, ये उनको चाहिए होता है। प्रिपरेशन कैसा किया आपने, मतलब स्टडी कैसा किया? अभी तो मतलब अंकुश सर ने जो बताए थे क्वेश्चंस हम्म, वगैरह, या फिर उनके जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह है, वो मैं करता था। फिर जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह है, फिर डायरेक्टली बता देता हूँ। अगर वो आपको आलोक इंस्टीट्यूट वगैरह पता होंगे, तो उनके भी वीडियोस आते हैं। हम्म, तो वो, हाँ, बहुत सारे वीडियो कंटेंट्स, अगर आपको सीखना है ना, तो आप डायरेक्टली मतलब सर्च करके मत जाओ कि इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये वो, तो एक एक हम्म, टॉपिक पकड़ लो। टॉपिक के अंदर के क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली आते हैं ना,
उसको सर्च करो, उसके हिसाब से आप जो आंसर्स आते हैं ना यूट्यूब पे वो पढ़ लो, वो नोट कर लो, आपके हिसाब से नोट्स बना लो। उससे क्या होगा ना, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। अगर आप रैंडमली सर्च करोगे कि ओरेकल डीबीए फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चंस, एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो उससे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम वो रैंडमली जो कंटेंट आएगा वो देखते हैं। लेकिन हम अगर क्यूरियोसिटी से जाएंगे ना क्वेश्चन सर्च करके, तो उसका आंसर थोड़ा सा हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे और हम खुद भी आंसरेबल हो जाएंगे उसके लिए। ओके। आपका कहाँ हुआ? क्या हुआ? हेलो। कौन सा कंपनी में हुआ? अभी हीरो मोटर कॉप कंपनी है गुड़गांव लोकेशन में। ओके। तो वहाँ पे गुड़गांव। क्लाइंट, हाँ गुड़गांव में, ये गुड़गांव में सेक्टर 18 में है ना। ओके ओके, क्लाइंट क्लाइंट है हाँ हीरो मोटर का। हाँ, एक्चुअली आउटवर्क्स कांग्रेचुलेशन कंपनी सर। है। हाँ, थर्ड पे कंपनी है आउटवर्क्स, जो मतलब इसमें सर्विस चलता है। सर्विस देती है। हाँ, कैंडल कैंडल जो है वहाँ पे सब डेटाबेस वगैरह, मतलब जो उनका स्टोरेज पार्ट है, हाँ, आउटसोर्सिंग, हाँ ऑपरेटिंग हाँ। सिस्टम, हाँ आउटसोर्सिंग करता है। ओएस का जो पार्ट है वो सब कैंडल देखती है, और जो एक्चुअल क्लाइंट है वो ओके। हीरो मोटर का। हाँ, आप फ्रेशर हो के कुछ एक्सपीरियंस दिखाया? नहीं नहीं, तो एक्सपीरियंस नहीं देखा था कुछ, सब फ्रेशर ही गया था। यही मेरा ओके। मतलब यही चीज थी जो सब लोग बोल रहे थे कि भाई एक्सपीरियंस लगा लो। तो मैं थोड़ा जिद्दी था कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं लगाना है, जो है वो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा 19 का पास आउट है, बीएससी कंप्यूटर साइंस हुआ था। मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में नहीं बताया। मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में बोल रहा था, तो मेरा भी इंग्लिश इतना फ्लुएंट नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा था कि थोड़ा ये हो जाए। तो मेरा 19 में बीएससी कंप्यूटर 19 साइंस से कंप्लीट अभी। हुआ। हाँ, हाँ 19 से अभी 25 6 साल गैप, तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कुछ हाँ, नहीं पता है क्या? मैं बताता हूँ सब चीजें। तो मेरा 19 में पास आउट हुआ था। उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, जो कंबाइंड ओके डिफेंस ओके। सर्विस करके है, आर्मी के। तो कोविड की वजह से वो सब स्टॉप हो गया बीच में, तो मैंने फिर से हाँ। ये किया कि अभी तो बैठ के नहीं चलेगा, तो कुछ तो जॉब कर लेता हूँ, फिर बाद में अगर चांस मिलेगा तो मैं गवर्नमेंट एग्जाम दे दूंगा। तो मैंने 21 में एक कंपनी थी सर्चलाइट एचआर करके, थाने लोकेशन पे, वो ज्वाइन किया था। वहां पे मैंने एज अ ट्रेनर 3 महीने काम किया। तो मैं वहाँ पे स्किल इंडिया प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, आईटी और डोमेन का सेक्शन था। तो उसके बाद में मेरा मतलब वर्किंग प्रोफेशन थोड़ा अच्छा था, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह अच्छा था, इसकी वजह से फिर वो जो ट्रेनिंग सेंटर था वो बंद पड़ गया। उसके बाद में उन्होंने रिटेन कर दिया मुझे उनके कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहाँ पे मैं एज ये किया था, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वहाँ पे ओके ओके। मैंने 3 साल, हाँ, दो दो 2.5 साल काम किया। फिर उसके बाद में मैंने मतलब थोड़े प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम थे, तो मैंने गाँव चला गया 4-5 महीने। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि भाई अभी तो मतलब ये इधर उधर का करना कुछ ये नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस हुआ था, मेरा आईटी बैकग्राउंड था, लेकिन गैप था। तो मैंने सोचा कि कुछ कोर्स वगैरह कर लेता हूँ। तो मैंने रिसर्च किया, और मुझे डीबीए का थोड़ा अच्छा लगा कि ये थोड़ा फ्यूचर इसका अच्छा है। फिर उसमें भी मैंने रिसर्च किया कि कौन सा टेक्नोलॉजी सही रहेगा, तो मैंने ओरेकल चूज किया। फिर कोर्सेज वगैरह ढूंढे, तो उसमें मुझे दो मिले थे, जो कि आलोक इंस्टीट्यूट और अंकुश सर का। तो अंकुश सर का मुझे फ्रेंडली लगा ज़्यादा, और वो उनका टीचिंग क्वालिटी वगैरह सब, ये स्टाफ वगैरह सब मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था। मतलब मई में मैंने उनको ये किया था, और जून में मेरा स्टार्ट हुआ कोर्स। तो जून से लेके 3-4 महीने हमने मतलब जो पूरा चला गया उसमें डीबीए का। फिर मैंने रैक का भी ज्वाइन किया था। तो रैक का मैंने किया स्टार्टिंग में, बट मतलब लास्ट लास्ट में तो मतलब सारा मिक्स होने लगा, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने लगा था ना। तो मेरे एसेंचर के साथ भी इंटरव्यू हुआ है। फिर उसके बाद मेरा ये एनवीकॉन करके है, वो ऐसे 3-4 कंपनी से मेरा इंटरव्यू हुआ था। दो वर्चुअल हुए थे, और दो फेस टू फेस हुए थे। तो ये सब इंटरव्यू चल रहे थे, उसी बीच में मैंने मतलब ऐसा नहीं कि सब नौकरी पे ज्वाइन हमें अप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट साइट्स पे भी जाके अप्लाई करता था। मतलब अगर कोई कंपनी अगर बोल रहा है कि ये कंपनी है, समझ लो कि एमडॉफ करके है, तो मुझे कंपनी के बारे में पता नहीं था। मैं सीधा वेबसाइट पे गया, वहाँ पे ओपनिंग्स वगैरह देखी, लॉगिन वगैरह किया, ओपनिंग्स वगैरह देखी, अप्लाई कर दिया। ऐसे मैंने साइट्स पे भी जाके अप्लाई कर दिया। तो ये करना चाहिए जब तक हमें मतलब कॉल स्टार्ट नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक एक 4-5 दिन बाद
कॉल्स आना चालू हो जाते हैं एकदम से फास्ट फास्ट फास्ट, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन उस टाइम पे हमें प्रिपेयर भी रहना है और कॉन्फिडेंट भी रहना होता है, ये सब चीजें होती है। तो ये, हाँ, एसक्यूएल ये का मैंने कोर्स गैप है क्या? एसक्यूएल का कंटिन्यू नहीं। कंटिन्यू करो, नहीं कंटिन्यू करो आप पहले, फिर बताऊंगा। तो मतलब मेरा जो गैप वगैरह था, तो ये पकड़ लो कॉलेज के बाद का मेरा 1 साल का था, जो कि कोविड के बीच में आ रहा था। वो तो मैं एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस का जो ये कर रहा था, मतलब एक गवर्नमेंट एग्जाम का कर रहा था। वो बता सकता हूँ क्लियरली। उसके बाद मैंने जॉब किया, उसका एक्सपीरियंस लेटर है, रिलीविंग लेटर भी है, और फिर बाकी का जो है, तो मुझे फेक कुछ लगाना नहीं पड़ा। उसके बाद का जो 5 महीने का गैप था, उसको मैंने एज बता दिया कि मेरा फैमिली मैटर्स था, तो वो मुझे करना ही पड़ा था, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो मैंने इंटर्नशिप किया है, उसका सर्टिफिकेशन तो मिला है हमें लर्नोवेट से। तो वो वाला सर्टिफिकेशन बता के उनको सिर्फ वो जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, उसके टाइम पे हमें जो भी हमारा है रियल वाला मैंने दे दिया कि मेरा वो कंपनी था, वहाँ पे मैंने काम किया, उसका मैनेजर का, एचआर का नंबर दे दिया। फिर लर्नोमेट का भी दे दिया, और लर्नोमेट स्टाफ स्टाफ तो जो है वो सपोर्टिव है। मैंने उनसे भी बात की कि मेरा अगर बीजी वगैरह हो गया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, तो आप बता देना। तो वो बोल दे के बीबीजी। हाँ। बता देंगे। हाँ, हाँ, वो बता देंगे, ऐसे बोला है उन्होंने। तो मतलब वो ऐसा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन वो भी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ, तो वो भी मतलब सपोर्टिव है। तो अभी तक तो मुझे कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं आया है कि मेरा गैप वगैरह है, तो ये है वो है। तो सिर्फ सीखना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत सारी चीजें यही है। सीखना तो सबको ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, एक्सपीरियंस रहेगा तो मतलब आपको रिपोर्टिंग वगैरह सब आता है ना। मुझे एडब्ल्यूआर रिपोर्ट मैंने सब जो हमें पढ़ाया गया था उसमें तो मतलब मुझे मतलब मैंने सेशन में बताया था, नहीं बताया था मुझे याद नहीं है। लेकिन अंकुश सर ने बताया था हमें, ओईएम में बताया था एडब्ल्यूआर रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ हम्म। पे जो एडब्ल्यूआर रिपोर्ट है, वो पुट्टी पे मतलब डायरेक्टली कमांड लाइन पे किया जाता है ना, तो उन्होंने ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग करा करा हुआ है। लेकिन वो पता होनी चाहिए ना कैसे जनरेट करते हैं, फिर कहाँ पे जाता है, वो कैसे सेंड करना है। और अगर हम्म। एडब्ल्यूआर रिपोर्ट ऐसा नहीं कि एक ही मांगा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे 4 से 7 बजे तक दे दो, तो वो ऐसा नहीं कि 4 से 7 बजे तक आ जाएगा। वो एक एक घंटे का, आधे आधे घंटे का कुछ रहता है उनका स्क्रिप्ट। तो उसके हिसाब से वो फाइल जनरेट हो जाती है, फिर उनको सेंड करना पड़ता है। ये सब चीजें मुझे नहीं पता थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये छोटी छोटी चीजें वो सिखाते हैं फ्रेशर को। अगर आप एक्सपीरियंस लगा के जा रहे हो, तो उनको वो ये कंसिडर करते हैं कि आपको सब पता है। तो आपको सीधा बोलते हैं कि भाई हाँ, ये स्क्रिप्ट है, ये जनरेट करना है, ये मेल पे आया, देखो, कर लो। ऐसे बोल देंगे अगर आप एक्सपीरियंस लगा के जा रहे हो और आपको नहीं आ रहा है। तो ये चीजें हैं। कॉन्फिडेंस एक बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बहुत डिफिकल्ट बात है, क्योंकि हाफ नॉलेज रहता है हमें, और हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ये चीजें भी बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी जो अगर आप एक्सपीरियंस लगा के जा रहे हो ना, तो रिपोर्टिंग का भी देखना पड़ेगा। क्रॉन जॉब जो रहते हैं ना, क्रॉन टैब का, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर सेल्स स्क्रिप्टिंग तो आना ही आना है। प्रोडक्शन पे तो सेल्स स्क्रिप्टिंग ही रहता है। सर्विस बेस पे ज्यादा सेल्स सेल्स स्क्रिप्टिंग नहीं रहता है, ऐसा मुझे मतलब अभी यहाँ पे आके पता चला है थोड़ा बहुत। क्योंकि वहाँ पे कैसा है ना, क्लाइंट्स बदलते रहते हैं, टास्क बदलता रहता है, लेकिन प्रोडक्शन पे काम सेम टू सेम रहता है ऑलमोस्ट। साल साल साल, 2 साल, 3 साल, तो वो स्क्रिप्टिंग रेडी ही रहता है। तो ये प्रोडक्शन पे काम मिलना मेरा मतलब नसीब ही है कि मुझे प्रोडक्शन पे काम मिला है। क्योंकि मुझे कोड पहले टाइप नहीं करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, मुझे पहला प्रोसेस समझना होगा, एक्चुअल कैसे काम करता है, प्रोडक्शन क्या होता है, नॉन प्रोडक्शन क्या होता है। ये सब चीजें मुझे समझ में आ रही है अभी। सिर्फ ये जो स्क्रिप्टिंग का काम है, वो भी मुझे सीखना पड़ेगा। वो मैं आगे जाके सीख लूंगा थोड़ा थोड़ा करके। तो लेकिन जो एक्सपीरियंस लगा के जा रहे हैं उनको ये आना चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूँ। और जो बैकअप का है, मतलब लॉजिकल बैकअप, फिजिकल बैकअप, लॉजिकल तो मतलब निग्लेजिबल है, लेता नहीं है कोई ज्यादा। अगर कुछ रिफ्रेश वगैरह करना हो तो लेते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए एक्सपीरियंस वालों को। और जो बड़ी वाली चीजें, रिपोर्टिंग पर्पस की, क्रॉन जॉब की, सेल स्क्रिप्टिंग की, फिर जो ट्यूनिंग का भी रहता है,
तो ट्यूनिंग का भी मतलब अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ 7-8 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, उनको भी ट्यूनिंग नहीं आता है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कि आपने 3 साल काम किया आपको परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आना ही चाहिए, लेकिन जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आना ही चाहिए। एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या है, क्या क्या स्टेप्स होती है, हाई लेवल स्टेप, लो लेवल स्टेप, ये पता होना चाहिए। मतलब Where मैं are जो you बोल रहा हूँ from, आपको। Jitendra? ओके। Where are you हाँ from? बोलिए बोलिए। Where are एक्चुअली you from? आई एम फ्रॉम कराड़, महाराष्ट्र, सातारा। Okay. या Okay. If you don't mind, can you share your WhatsApp number? या श्योर श्योर। आई विल आई विल शेयर ऑन व्हाट्सएप, ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। Okay. या ऑल्सो यू कैन फाइंड मी ऑन लिंक्डइन। माय नेम इज जितेंद्र संभाजी साळुंखे। You can directly search on LinkedIn also. किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लो। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस वाले, फ्रेशर वाले भी पूछ लो, क्योंकि मैं भी फ्रेशर ही हूँ, बातें कर रहा सैलरी हूँ नहीं एक्सपीरियंस पूछते वाले वर्षा जैसा। मैडम किसी की? क्या क्या? सैलरी नहीं पूछते किसी की? नहीं नहीं, सैलरी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस, ये जो बता, मैं इतना सारा बता रहा हूँ, ये सब ज्यादा एक्सपीरियंस वालों को नहीं मतलब नहीं थोड़ा सा वो, कैच हो जाए। हाँ हाँ, एज अ फ्रेशर कितना सैलरी मिला है वो पूछ रहे मैम। मैम पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहा है? वर्षा मैम है कोई। 1 मिनट में चैट नहीं पढ़ रहा था, 1 मिनट चैट पढ़ता हूँ। यू हम्म, कैन हम्म। कॉन्वर्सेशन, थैंक यू श्रेयस। कैन यू टॉक इन इंग्लिश ब्रो? ओके। Rajendra, you can ask me question in English. I will answer you because a lot of people can't understand proper English, and I can also can't talk proper in English. So because, but you can ask me in English. I will answer you. How much package you got? वर्षा, एक्चुअली पैकेज बताना तो सही नहीं रहेगा, लेकिन समझ लो अभी देखो, मैं टिपिकल महाराष्ट्रन हूँ। मेरा भी थोड़ा मतलब खर्चा इतना नहीं रहता है, और मैं गुड़गांव लोकेशन पे रह रहा हूँ। तो मैं घुमा घुमा के बोल रहा हूँ, लेकिन पकड़ लो कि मुझे पैकेज इतना है कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ गुड़गांव में। और अगर 1-to-1 हो जाए तो मतलब मैं बता सकता हूँ क्लोज वालों को मेरा सैलरी कितना है, पैकेज कितना है, लेकिन ऐसा मतलब ग्रुप में बताना थोड़ा मुझे हेजिटेट हो रहा है। लेकिन पकड़ लो, मैं गुड़गांव में सरवाइव कर सकता हूँ, मेरा कुछ तो 4 पैसा बचता है, जिससे मैं थोड़ा इंजॉय भी कर सकता हूँ और सेविंग भी कर सकता हूँ। आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट पूछते हैं क्या? आर्किटेक्चर पूछा था, फ्रेशर वालों को तो पूछते ही पूछते हैं आर्किटेक्चर। उसमें भी आर्किटेक्चर की भी मतलब इजी क्वेश्चन ये रहते हैं कि व्हाट इज एचजीए, व्हाट इज पीजीए। देन उसके बाद जो हमारा इंस्टेंस है, इंस्टेंस लेवल में क्या होता है, इंस्टेंस में क्या होता है। फिर वो बैकग्राउंड प्रोसेस पूछते हैं। फिर उसके बाद ये भी मतलब थोड़ा सा उसके आगे जाके मुझे ये भी पूछा गया था कि आर्मैन्स के जो जॉब रहते हैं, हम जो आर्मैन कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कौन से इसमें मेमोरी के सेक्शन में रन होता है। तो मुझे आंसर नहीं करने आया था, तो एक्चुअली ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर जो लॉन्ग एसक्यूएल बड़ी क्वेरीज वगैरह रहती है, तो वो कौन से पूल में, लार्ज पूल में वगैरह, मतलब ये जो रहते हैं वो भी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हमें अगर ये जीए का साइज चेक करना है, ये जीए में फिर से पकड़ लो कि जो हमारे रीडू बफर है, वो कितना, उसका हम्म। साइज कितना है, वो कैसे चेक कर सकते हो, उसका व्यू टेबल कौन सा है। ये चीजें भी पूछते हैं। फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस वाला हो, उसको पूछते ही पूछते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज है। मुझे भी मतलब इतना नहीं आ रहा था उस टाइम पे, मैंने मतलब बता दिया था कि जो ये जी अंडरस्कोर कुछ था, टेबल स्पेस, सॉरी टेबल उसका नाम, नहीं सॉरी एचजीए था, एचजीए था, $V एचजीए। तो वहां से मतलब हम उसका साइज वगैरह चेक कर सकते हैं, ऐसा मतलब बता दिया था। लेकिन ये एक बता दूं सब लोगों को कि जो व्यू टेबल्स है,
वो सबको आनी चाहिए। उस पे थोड़ा फोकस कर लो, क्योंकि अगर फिर भी यहाँ पे सब ऑटोमेशन हो, सेल्स स्क्रिप्टिंग भी हो, कुछ भी हो, या फिर ओईएम भी हो, लेकिन आपको व्यूज पता होने चाहिए। क्योंकि अगर हमें कमांड लाइन पे काम करना होगा, तो अगर किसी ने पूछ लिया कि मुझे ये चेक करना है, वो चेक करना है, लॉन्ग लॉन्ग रनिंग क्वेरी जो एसक्यूएल की चल रही है, वो कहाँ पे चेक, कौन से व्यूज में चेक करना है, या फिर डेटाबेस पैरामीटर व्यूज। हाँ हाँ, फिर ब्लॉकिंग सेशंस कौन से चल रहे हैं, ये सारे व्यूज पता होने चाहिए, 100% पता होने चाहिए। बेसिक चीजें जो कि मुझे भी इतनी पता नहीं है, और मैं भी वो अभी सीख रहा हूँ। लेकिन मेरे जितने इंटरव्यू हुए ना, उसमें सभी में मुझे व्यूज पूछे थे, सभी में। एसेंचर में भी हुआ था, वहां पे तो मुझे कम से कम 7-8 व्यूज पूछे थे। उसमें से मैंने 2 ही बता पाया था, जो कि वी डॉलर डेटाबेस का था और वी डॉलर सेशंस का ओके था। ओके सॉरी, प्रोसेसेस का, सेशन नहीं था, प्रोसेसेस का, वी डॉलर प्रोसेसेस। वो मतलब बता पाया था। बाकी चीजें तो मेरे सर के ऊपर से, दिमाग के ऊपर से गई थी कि ये क्या पूछ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हुआ था। आई तो हैव वन पहले तो थिंग। मैं यस, हम्म कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, मुझे ये सबको ये एडवाइस देना है सबको कि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो ना, आप रैंडमली कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उसका जेडी सबसे पहले पढ़ लो, कि वहाँ पे जेडी क्या है। उसके हिसाब से हमें कितना आता है वो साइड में रख लो, और जो नहीं आता है उसमें से भी हमें कितना आता है। अगर ये परसेंटेज अगर पकड़ लो 90 के मतलब 80-90 के आसपास जा रहा है ना, तो आप सीधा अप्लाई कर लो और आगे चले जाओ। मतलब उसको कुछ देखो मत। लेकिन जहाँ पे इजीली, मतलब जो सारी चीजें जेडी में है और सब आती है ना, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर ही रहोगे, लेकिन वहां पे ज्यादा फोकस करो कि मुझे ये इंटरव्यू क्रैक करना ही करना है, किसी भी चीज, किसी भी हालत में। लोकेशन कहाँ का भी हो, अगर आप फ्रेशर हो, अगर एक्सपीरियंस वाले होगे, तो आपको पैकेज का थोड़ा पैरामीटर्स आपको सेट करना पड़ता है कि पकड़ लो, आपको इतना हाइक चाहिए, या फिर ये चाहिए, वो चाहिए। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा फिल्टरेशन भी होता है, थोड़ी तकलीफ भी होती है कि भाई मेरा पैकेज समझ लो 5 लाख है, तो मुझे 7 लाख चाहिए, और आपने जहाँ पे अप्लाई किया वहाँ का बजट 6 लाख है या 5.5 लाख है, तो वो नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ पे आपका फिल्टरेशन होता है, और जो बंदा 5 लाख में रेडी होता है उसको हो जाता है वो वहाँ पे। तो एक्सपीरियंस वालों एज को ये पर द प्रॉब्लम फेस करना। सिचुएशन जॉब मैटर करता है अभी सिर्फ। एज पर द हाँ, नहीं नहीं, सिचुएशन। बहुत सारे लोग, मेरे मेरे दोस्त भी है जो अभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनका सैलरी पैकेज पकड़ लो 6 लाख था वहां पे, तो उनको 30% से एटलीस्ट 30% हाइक चाहिए। लेकिन ऐसी ऐसी कंपनी है जहाँ पे वो नहीं दे पा रहे उतना पैकेज। तो अभी वो बंदा फ्रस्ट्रेट होके बोल रहा है कि भाई मैं अभी जितना मिलेगा एटलीस्ट सेम मैच भी कर लिया तो मैं कर लूंगा। अभी ये बोल रहा है, लेकिन वो 1-2 महीने से स्ट्रगल में था कि मुझे इतना ही पैकेज चाहिए, इतना ही पैकेज चाहिए। इसकी वजह से क्या है ना, फिल्टरेशन भी होता है। एक्सपीरियंस वालों को ये प्रॉब्लम होता है, फ्रेशर वालों को तो कुछ प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। जो भी लोकेशन हो, जो भी सैलरी हो, और जो भी हो, करना ही करना है। अभी यहाँ पे भी मैं सोच के आया था कि मुझे कितना शिफ्ट मिलेगा पता नहीं, लेकिन मुझे अभी नाइट भी लगने वाली है मंडे से। नाइट में तो ज्यादा काम नहीं रहता है, थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो ये फ्रेशर को ध्यान में रख के करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था पूछ लो। नहीं, मुझे कमांड पूछते हैं, मतलब वो कमांड पूरा ऐसा पूरा पूछते हैं क्या कमांड? जैसे कि तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होगा तो पूरा मतलब लॉग फाइल पैरामीटर ये पूरा कमांड पूछते हैं क्या? हाँ, पूछते एसेंचर में मुझे पूछा था। मैंने बोला था, मतलब जब हम रिज्यूम में डालते हैं, जो भी रिज्यूम में हम्म, डालते हैं, सेम हमें हमारे इंट्रोडक्शन में देना है, अगर पूछा गया इंट्रोडक्शन तो। और इंट्रोडक्शन के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते हैं स्टार्टिंग में। तो अगर आपने जो भी बोला है वही क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरा एसेंचर में हुआ था, उस टाइम पे मैंने लॉजिकल बैकअप, फिजिकल बैकअप बोला था ना, तो उस टाइम पे मुझे लॉजिकल बैकअप के बारे में पूछा था। तो मुझे उन्होंने, एकदम से मैं बता रहा था, उन्हें स्टॉप कर दिया और पूछा कि ओके, एक्सप्लेन द एक्सपीडीपी, हाउ यू कैन रन द अच्छा। एक्सपीडीपी। तो मैंने बता दिया एक्सपीडीपी में हमने पहले तो हमें जो स्कीमा का लेना है या फिर टेबल का लेना है, तो उसका टेबल इज इक्वल टू, फिर उसके बाद जो हम डम फाइल क्रिएट करने वाले हैं उसका लोकेशन, फिर लॉग फाइल का लोकेशन, फिर साइज वगैरह, ये सब पैरामीटर्स हमें बताने होते हैं उनको। ओके वो ओके। ऐसा नहीं कि आना ही चाहिए। अगर आप कौन से कंपनी में दे रहे हो, ये डिपेंड करता है। एसेंचर में तो आना ही चाहिए, ऐसे मतलब एमएनसी कंपनी में आपको डिटेल ओरिएंटेड रहना पड़ता है कि जो भी चीज बताओगे आप डिटेल ओरिएंटेड और सिंपल लाइन में बताओ।
और जो नॉर्मल मतलब कंपनी है वहां पे आप थोड़ा बहुत हिचकिचा भी गए ना, तो अगर सामने वाला बंदा उतना कंफर्टेबल करता है आपको, तो वो बताता भी है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में तो आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा इंटरव्यू हुआ था, उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया था एक्सप्लेन करते टाइम पे आरमैन का। तो वो उन्होंने बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा, जितना मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा था, मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर से मैंने इंग्लिश में स्विच किया। क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया हिंदी में बोल दो तो आप हिंदी में बोलने लगो। आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए और फिर से आपको इंग्लिश में स्विच होना चाहिए, क्योंकि आपका फिर जो इंप्रेशन है वो डाउन हो जाएगा कि आप कंटिन्यू हिंदी में बोलोगे। तो ये चीजें भी बहुत मतलब, सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। मुझे पता है, सबको पता है कि हम नर्वस हो जाते हैं स्टार्टिंग में। जैसे अगर समझ लो हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, जो भी फेस टू फेस हो या फिर ऑनलाइन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां पे अब शेड्यूल हो गया तो हम पहले से हमारा नर्वसनेस ट्रिगर हो जाता है कि अरे भाई अभी मेरा इंटरव्यू है, कल इंटरव्यू है, तो हम नर्वस हो जाते हैं। फिर उसी टाइम पे हम जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो फिर नर्वसनेस नर्वसनेस और बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन जो पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी रहते हैं कुछ कुछ, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते क्योंकि हम नर्वस होते हैं। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस वाला हो या फिर नॉन एक्सपीरियंस वाला हो, कोई भी हो बंदा, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उस पर भी काम करना चाहिए। और नर्वसनेस कम करने के लिए बहुत सारी टेक्निक होती है, जो फिजिकल टेक्निक भी होती है वो कर लो, या फिर जो मेंटली कुछ थोड़ा सा बहुत इधर उधर करने के लिए वो भी कर लो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत इजी रहते हैं कभी कभी, लेकिन हम नर्वसनेस की वजह से समझ नहीं पाते क्वेश्चन। तो और एक चीज मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ। जो भी आप इंटरव्यू देते हो, अगर आपका फेस टू फेस रहेगा तो आप आपका फोन का रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हो। फोन का रिकॉर्डिंग चालू करके जेब में रख लो, या फिर अगर आपका वर्चुअल राउंड है लैपटॉप पे रहेगा तो आप फोन का रिकॉर्डिंग चालू करके साइड में रख सकते हो। अगर आप ओपनली मतलब स्पीकर पे कर रहे हो तो, अगर माइक पे कर रहे हो तो आपके पास कुछ ऑप्शन रहेगा रिकॉर्डिंग का, तो कर लो। क्योंकि उससे क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम याद नहीं रख पाते इंटरव्यू के बाद में। तो वो क्वेश्चन हम अ, मतलब कुछ भी बोल जाते हैं, पता भी नहीं चलता हमने क्या बोला था। तो इंटरव्यू के बाद हम रिकॉर्डिंग सुन के पता चल सकता है कि हमने ये क्वेश्चन ऐसा पूछा था, हमने क्या आंसर किया, तो हमसे क्या गलती हुई थी। नेक्स्ट टाइम पे हम जब उसका प्रिपरेशन करेंगे तो समझ लो कि वो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड का खेल है। वो हम बाद में अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन, उसने नर्वस हम नर्वस भी होंगे, अगर उसने उस क्वेश्चन सेम पूछा तो हम आंसर कर पाएंगे, क्योंकि हम बाद में प्रिपेयर करे होंगे। ऐसा होता है। हाँ। गुड गुड क्या हुआ? हेलो? गुड। हाँ, थैंक यू थैंक थैंक यू यू। फॉर थैंक यू फॉर दैट सजेशन। अरे थैंक सजेशन, ठीक है, जी। थैंक यू, ठीक है, लेकिन नहीं 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 अ, नहीं नहीं, ये पता नहीं होता है किसी को। अभी ये कैसा है, प्रिपरेशन करने के बाद धीरे धीरे ये होता है ना, हाँ, रियलाइज होता है या कि क्या गलती यस। हो रही है क्या नहीं। हाय हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है, बोलिए। Actually, I want to ask whether they touch any question related to data guard or any question to Golden Gate. नो, एक्चुअली दे आस्क मी दैट डू यू नो डेटा कार्ड, do you know rack? But actually, as I'm fresher, so I tell that I understand data guard concept, rack concept, but Okay. I did not work on that. But if you are experienced, they will ask you 100%. Fine, fine. And Golden Gate, yeah, and Golden Gate, it's depend on the JD of that company. If they required Golden Gate, then it's must to know the Golden Gate also. Rack also they didn't ask any question. No, actually, no. Actually, I told that, but you can't understand. I guess I told in Hindi that there is a 2 person. They are experienced person. One is 2 to 3 years experience, and one is more than 7 year experience. They also don't know the rack concepts. Okay, they Oh, seven they plus those means some. yeah. Oh, Yeah. okay. They don't know the rack concept in details, because they work in 3 to 4 companies. Hello, Yeah, I'm listening. hello.
हाँ कंटिन्यू ठीक, कंटिन्यू। ओके। तो they don't know total about the rack concepts because they didn't work on that. They work 3 to 4 companies before that, but there wasn't there were they don't use that rack concept before that. So actually they are studying also in that in this situation. So I realized that why I did that rack course right now, because it's very difficult to study a lot of things at a time. So my recommendation is just just do the DBA concept thoroughly, each and every details, that all things that DBA DBA's day-to-day job. Then you can come to rack. Then you can come to what you can Golden OCI Gate. OCI, OCI yes, OCI is very after DBA we can clear our data guard concepts. Then we can do rack. Then we can do Golden Gate. After that OCI, and after this all we can switch to Exadata and all that lot of concepts. You can learn. You can understand the technologies, but don't go in deep before completing the DBA task and DBA day-to-day activities. So that my recommendation. बहुत सिंपल, जॉब लगने के बाद। हेलो, हेलो। हाँ यार। हाँ, आर्मिन पे आपको कैसा क्वेश्चन पूछा था? और मैंने का क्वेश्चन ये पूछा था कि मतलब स्टार्टिंग में ये पूछते कि व्हाट टाइप ऑफ बैकअप्स यू टेकन। सो उसमें हम बताते हैं, पहले तो बताएंगे कोल्ड बैकअप एंड हॉट बैकअप। फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि जो ट्रेडिशनल वे था बैकअप का, जो कि हम फिजिकल फाइल्स कॉपी करके ट्रांसफर करते थे पहले के टाइम पे, आरमाइन के पहले, मतलब 12C के पहले। तो उसके बाद हमने क्या किया कि आरमाइन कंसेप्ट जब यूटिलिटी आई थी, उस टाइम से हमने जो हमारा टास्क हुआ वो ऑटोमेटिक हुआ है। तो उसके बाद में हम आरमाइन का कौन सा बैकअप लेते थे, तो ये बताना है कि जो हमारा फुल डेटाबेस बैकअप है, फिर इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल बैकअप है। डिफरेंशियल में हम जो बैकअप्स लेते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप में, कि L1 L0 और L1 का बैकअप वो बताना होता है। अगर उन्होंने ये हम थ्योरेटिकल बताएंगे स्टार्टिंग में। तो उसके बाद अगर उन्होंने पूछा कि स्टेप्स बताओ आरमैन के, तो हमें स्टेप्स बताना है कि हमें पहले क्या करना है, कौन से स्टेज में अगर डेटाबेस अप एंड रनिंग है तो हमें कौन से स्टेज में जाना है, माउंट स्टेज में, नो माउंट्स में, फिर कौन से फाइल्स का बैकअप कब ले सकते हैं, फिर रिस्टोर टाइम पे हमें कैसे रिस्टोर करना है, ये सब स्टेप्स पूछते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो आप एटलीस्ट जो लो लेवल सीक्वेंस जो होता है, मतलब स्टेप्स, कि क्या करने के बाद क्या करना है, क्या करने के बाद क्या करना है, ये स्टेप्स अगर आपने ध्यान में रख लिया तो भी चलेगा। और जो हाई लेवल स्टेप्स रहती है उसमें क्या होता है कि हमें स्क्रिप्ट भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल स्क्रिप्ट क्या रन करते हैं हम। अगर हम डेटा फाइल्स का बैकअप लेने वाले हैं तो डेटा फाइल्स के हम जो सर ने बताया था हमें, जो चैनल्स क्रिएट करते हैं हम लोग, तो वो चैनल्स क्रिएट का वो स्क्रिप्ट पूरा पता होना चाहिए। फिर वो हमने स्क्रिप्ट भी रेडी कर ली, तो अगर हमें ऑटोमेशन करना है कि भाई मुझे ये स्क्रिप्ट मैंने बना के रखी, मुझे सिर्फ एसएच करके वो स्क्रिप्ट रन करनी है, तो वो हो गया कभी कभी का। अगर हमने शेड्यूल किया हुआ बैकअप है तो हमें क्रॉन टाइप का भी आना चाहिए। ये सब एक्सपीरियंस वालों को बता रहा हूँ मैं कि हमें बैकअप का लेना है तो हमें पहले स्टेप्स पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें स्क्रिप्ट जो सेल स्क्रिप्ट हम करते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद अगर डेटाबेस का बैकअप हम डेली लेते हैं तो उसके लिए हमें क्रॉन जॉब्स भी पता होनी चाहिए। ये सब आरमैन का बैकअप का प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग अगर अच्छा। आपको डेटाबेस, हाँ, बैकअप बैकअप अगर पढ़ना है तो आपको पहले थियोरेटिकल समझ में आना चाहिए इन डिटेल, कि अभी हम आरमैन यूटिलिटी करें लेकिन स्टार्टिंग में कैसे करते थे, उसके पहले बैकअप कैसे लेते थे। तो वो बैकअप प्रोसेस था ट्रेडिशनल वे, जो कि सीधा कॉपी कर दिया और जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे पेस्ट कर दिया और वहाँ पे माउंट कर दिया। यूएसबी जस्ट लाइक ए पेन ड्राइव, हमने कुछ डेटा इसमें भर दिया लैपटॉप में, यहाँ से निकाल लिया दूसरे लैपटॉप में डाल दिया, वो ट्रेडिशनल वे था।
और ये टाइम पे कैसा है, इन्वायरमेंट वगैरह चेंज होने वाला है या अपग्रेडेशन होने वाला है, उस टाइम पे हम जब ये बहुत सारे मतलब बहुत डीप चीजें हैं ये, तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं कि हम सब दिमाग में रख के करेंगे। इसके लिए आरमैन आरमैन यूटिलिटी यूज करके हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सिंप्लिसिटी करते हैं कि हमें ज्यादा देखना नहीं पड़ता, सिर्फ हमने एसपी फाइल का बैकअप बोल दिया, एसपी फाइल का बैकअप जो लोकेशन हमने दिया है वहाँ पे एफआरए लोकेशन पे चला जाएगा। कंट्रोल फाइल बोल दिया है बैकअप, तो कंट्रोल फाइल के लोकेशन में चला जाएगा। डेटा फाइल बोल दिया, डेटा फाइल चला जाएगा। ये सब थ्योरेटिकल पता होना चाहिए। उसके बाद हमें स्क्रिप्टिंग अगर किया कि चैनल्स क्रिएट किए, फिर उसके बाद हमने L0 ले ले या N1 का बैकअप ले रहे, ये स्क्रिप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्रॉन जॉब्स जो कि एक्सपीरियंस वालों को पूछते हैं 100%। तो आपको स्क्रिप्ट भी पूछे थे क्या, वो स्क्रिप्ट हाँ मुझे लिखना? पूछा था एसें हाँ एसेंचर में पूछा था, बट एक्चुअली मैंने बोल दिया कि मतलब मैं समझ मतलब याद करके बता रहा था कि चैनल्स क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि अगर मुझे डिफरेंशियल बैकअप लेना है तो क्या करेंगे, तो फिर मुझे आर्काइलॉग का बैकअप लेना है तो आर्काइलॉग के लिए क्या है, तो ये सब पूछा था। तो क्या होता है ना कि नर्वसनेस की वजह से हम कुछ भी बोल जाते हैं। अगर ये हमने हम्म प्रॉपर प्रिपरेशन किया तो वो नर्वसनेस के अंदर भी हम प्रॉपर आंसर कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले क्या बोल रहे हैं। हम्म इसके लिए मैंने जो आपको ओके। टेक्निक बताया कि आप रिकॉर्डिंग कर लो इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि क्वेश्चंस तो हम्म हमें याद नहीं रहते। आप सबको सभी को पता है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, मुझे ला के सामने रख दो कि मेरा ये इंटरव्यू हुआ है, मुझे 25 क्वेश्चन पूछे थे, मुझे 25 के 25 याद है, मैंने आंसर भी क्या किया था सब याद है, कोई नहीं बता पाएगा, मुझे गारंटी है। तो आपको ये चीजें है ना, ये छोटी छोटी चीजें आपको हम्म करनी है, क्योंकि हाँ स्टार्टिंग स्टेज में बहुत डिफिकल्टी होती है, प्रेशर हो या फिर स्विच भी करना होगा तो नहीं नहीं, ये अच्छा ऐसा कि आइडिया है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ, हाँ या ये थैंक यू और रेज्यूमे में मुझे जैसा आप बोल रहे हो फ्रेशर, तो वो हाँ हाँ आप सिर्फ मींस डेटाबेस का जब रेज्यूमे बनाए हो तो उसमें सिर्फ हाँ हाँ ये लर्निंग का इंटर्नशिप यही दिखा है क्या? हाँ 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 मेरा मेरा रिज्यूमे जो है मैंने एक्चुअली लिंक्डइन पे डाल के रखा है। आप लिंक्डइन पे जाके देख चेक कर सकते हो। ओके। इसमें मैंने हाँ फोटो शेयर करके रखा है नीचे। मेरा जो एक्सपीरियंस वगैरह है सब मैंने डाल दिया है ना, उसके नीचे मैंने फोटो शेयर करके रखा है डॉक्यूमेंट्स में, आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने क्या डाला था, मैंने स्टार्टिंग में जो हाँ मैंने उसमें रैक भी डाला है, डेटा कार्ड भी डाला है। लेकिन मैंने उसमें ये डाला है कि आई एम ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग, ऐसा डाला है। हम्म ठीक है। और हाँ ओके। अगर आपको आता है तो आपको ऐसा दिखाना है, सेंटेंस ऐसा बनाना है कि आई हैव आई हैव वर्क ऑन दैट, ऐसा आपको सेंटेंस बनाना है। और आप फ्रेशर हो, आप या स्विच कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आपको बताना है कि आई ऑब्जर्व एंड लर्न दैट। और अगर ऐसे कुछ पूछा कि आपने अपग्रेडेशन पैचिंग, मैंने अपग्रेडेशन पैचिंग भी डाल के रखा है उसमें, लेकिन उसमें मैंने हम्म ऐसा डाला है कि हाँ मैंने भी उसमें भी ऐसा डाला है कि ऑब्जर्व एंड लर्न। उसकी वजह से अगर उन्होंने पूछा कि आपने अपग्रेडेशन किया है क्या, पैचिंग किया है, तो मैंने ये भी मुझे पूछा तो मैंने बोला कि मैंने किया नहीं है। जो हमारे सीनियर टीम थी, जो L1 L2 टीम थी, वो कर रही थी, मैंने देखा था। तो हमें अंदर की चीजें भी पता होनी चाहिए कि अपग्रेडेशन पैचिंग तो डेली नहीं चलता है। वो तो मतलब पैचिंग का 3 महीने बाद चलता है, अपग्रेडेशन तो सालों सालों बाद चलता है। तो उनको ये भी पता होता है कि ये चीजें बार बार नहीं होती है, तो आपने एक बार देख लिया, आपने स्टडी कर लिया। और उनको ये भी हम्म नहीं चाहिए कि आपने किया हुआ है। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के ऊपर रहेगा, तो आपको 100% आपने अपग्रेडेशन पैचिंग किया रहेगा या एटलीस्ट देख लिया होगा। ओके। तो जैसे आप हाँ बोल रहे हो आई हैव वर्क ऑन इट, मीन्स लाइक यू आर रिलेट पॉइंटिंग टू द लर्नोमेट एक्सपीरियंस, राइट? या ओके। लर्न बट एक्चुअली सबको पता है, आपको भी पता रहेगा कि ऐसा मतलब हाँ वर्किंग हाँ, मतलब वो ऐसा पता कुछ। है, लाइक लाइक हाँ, मीन्स एक्चुअली जब इंटरव्यू पे होता है तो जैसे ये मीन्स कुछ कुछ हम बना कर जाते हैं, राइट? बट यू हैव टू या प्रेजेंट दैट थिंग लाइक इन द या रियल सिचुएशन, सो दैट्स इट्स व्हाई लाइक इट्स हाउ इट्स डिड यू वेरी हैंडल, लाइक दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। या इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, बट आई मैनेज दैट, दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके। नहीं नहीं नहीं, हाँ वही समझ, क्योंकि मुझे वही समझ नहीं आ रही कि हम बनाएंगे एक,
फिर वहां सिनेरियो को प्रेजेंट कैसे करना है। या मैं क्या क्या था हम्म ना, मतलब जो क्लास में मेरे साथ बंदे थे, मतलब मैं ऑफलाइन में था। सर हम्म को भी मेरे से बहुत उम्मीद थी, लेकिन क्या था ना, मेरा बहुत डाउन टाइम चल रहा था। जो 3 4 मतलब पर्सनल चीज बता रहा हूँ ये मैं। मेरा बहुत हम्म डाउन डाउन टाइम चल रहा था, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी। उसी बीच में सबको लग रहा था कि यार ये बंदा कुछ कर ही नहीं रहा है, स्टडी नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, लेकिन ये जो चीजें है ना, ये साइलेंटली करनी होती है। ग्रुप डिस्कशन वगैरह सब हम्म अलग चीजें हैं। जो पर्सनली चीजें होती है ना, कि जो हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड रहता है ना, उस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हम रोज करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वो चीजें हमें याद भी रखनी नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिक, हम जब हम्म इंटरव्यू में नर्वस भी हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक बोल जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, में क्या बोल रहा हम्म हूँ? हम्म, हाँ। ये हाँ चीज हाँ। है कि हम अगर बार बार, वो थियोरेटिकल होना तो 100% जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल होना और प्रैक्टिस में होना, ये बहुत जरूरी चीज है। उसी टाइम पे हम बोल पाते हैं ये सब चीजें। राइट। ऐसी चीज है। और ओके। यहाँ पे जो मैं हम्म यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरा तो अभी मंडे से मैंने ज्वाइनिंग किया है। मेरा आज सैटरडे संडे ऑफ है, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट वाइज है ओके, तो। कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ थैंक यू। मंडे से मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो यहाँ पे हम 5 लोगों की टीम है डीबीए की। उसमें से हम्म 2 बंदे तो ऐसे, मतलब इतने 4 5 दिन में भाई के जैसे हो गए। तो ये बॉयज में ऐसा होता है कि बॉयज में मैनेज कर लेते हैं सब लोग, क्योंकि हम्म जैसे भाईचारा होता है, वो अगर रहेगा कंपनी में हम्म तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन गर्ल्स का Actually, थोड़ा the ये प्रॉब्लम thing होता है is, कि the not boys only, means आप लकी हो कि आपके जो भी आसपास जो भी कलीग है, like surrounding is good, like हाँ, whatever you got it, या right? So that is a या good या thing. क्योंकि they are helpful, that's why you think, I यस mean, you will be comfortable. So that's good या thing, right? तो ये तो प्लस पॉइंट है ही, तो बहुत यस। अच्छी बात है। तो वो मीन्स आपको तो वो हेल्प कर रहे, मीन्स लाइक व्हेन यू स्टार्ट, आई मीन इट्स बीन लाइक 2 3 days यू आर सेइंग, राइट? या सो नो, लाइक इट्स जब आप इट्स 4 डे, 4 डे। 4 days, सो आप जब वो देख रहे हो रियल, अब तो आप रियल लाइफ को देख रहे हो, तो वो कैसे लग रहा है? मीन्स थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो, और लाइक इट सीम्स लाइक ओके, आई मीन कैसा एक्सपीरियंस है ये? um, एक्सपीरियंस तो मेरे लिए पूरा, मतलब अभी तो मैं टिपिकल महाराष्ट्रन हूँ। तो मैं हम्म महाराष्ट्र में बहुत, मतलब महाराष्ट्र के बाहर तो मैं इतना नहीं रहा हूँ। घूमने के लिए गया हूँ। तो अभी यहाँ पे मुझे ये सराउंडिंग मैच करना, यहाँ के लोगों को मैच करना, खाना मैच करना, इन्वायरमेंट मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे सपोर्ट भी किया लोगों ने। और जो हम्म बंदे हैं वो भी सपोर्टिव है। वो तो केटी है, तो केटी में उनको पढ़ाना ही पड़ता है, उसमें कुछ डाउट नहीं है। हम्म लेकिन जो हम्म टोटल टीम है, उसमें से 2 बंदे ऐसे हैं जो मुझे मतलब मेरे अच्छे से समझा रहे हैं, एकदम एकदम भाई के जैसे समझा रहे हैं। और जो 2 है वो सीनियर ओके। लेवल के हैं, उनके ऊपर तो बहुत सारा टास्क रहता है, उसके ऊपर उनके ऊपर तो बहुत सारा काम रहता है। तो वो भी बताते हैं, हम्म लेकिन इतना इन डीप नहीं बताते हैं। ओके। ऐसा है। हाँ, हम्म तो जो भी हम्म ये फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, या फिर आप स्विच मार, एक्सपीरियंस वालों को तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। उनको सिर्फ वो वहाँ का हम्म इन्वायरमेंट समझने के लिए टाइम थोड़ा चाहिए होता है। बाकी तो उनको टास्क सारा हम्म पता होता है एक्सपीरियंस वालों को। जो स्विच मार रहे हैं या फिर फ्रेशर है, उनको पहले तो इन्वायरमेंट समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद प्रोसेस वगैरह, टास्क भी धीरे धीरे सीखना पड़ता है। ये चीजें मुझे अभी समझ में हम्म। आ रही है। तो उसके लिए So do you जो feel भी कोई बन pressure? या आई एम फ्रेशर No, no. Do you एक्चुअली feel आई pressure, like stress, अच्छा about अच्छा, this new फ्रेशर। environment? Like how do you? या एक्चुअली लिटिल बिट आई एम फीलिंग प्रेशर राइट नाउ, बट अभी हम्म तो क्या है ना, जो जो भी कोई हो, मतलब गर्ल्स हो हम्म या बॉयज हो, जो हम्म जो भी आपके साथ कंफर्टेबल है उस वर्क इन्वायरमेंट में, आपके टीम में, उसके साथ आप बॉन्डिंग अच्छा बना लो। उसी एक को हम्म पकड़ लो पहले, जो जो बंदे आपसे मतलब ये कर रहे हैं ना कांटेक्ट, अच्छा उन्हीं को पकड़ लो। जो भी आप उनको जो भी हेल्प करना पड़ेगा आप कर लो। वो तो मतलब निकल जाएगा आराम से, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी रहती है जो डेली टास्क की रहती है, हमें नहीं पता चलती है, वो बता देते हैं आराम से। और जो बड़ी बड़ी चीजें हम्म रहती है वो भी वो बता देते हैं आराम से। मतलब ये पकड़ लो कि ये वर्क इथिक्स में आता है।
ये टेक्निकल में नहीं आता है, नॉन टेक्निकल में ये सबको आना चाहिए, हम्म और फ्रेशर को तो बहुत प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में। राइट राइट। So for एक्सपीरियंस वालों को तो interview पता आता है। round, so एक ही round हो गया हुआ क्या, या like how many नहीं नहीं, rounds you have? 2 राउंड्स वर्चुअल राउंड्स। 2 rounds हाँ वर्चुअल। virtual. Okay, okay. So both are orally, like means कोई practical नहीं था, like प्रैक्टिकल conversation. नहीं था कुछ। Oh, नहीं okay, नहीं okay. था। Both round में सिर्फ means वो कैसे different different scenario था, या like same related topic कैसे था? डिफरेंट डिफरेंट नहीं था एक्चुअली, सेकेंड राउंड में भी सेम क्वेश्चन आए थे मोस्टली, हम्म मतलब जो बैकअप के बारे में था, क्रॉन जॉब्स के बारे में था। तो मतलब जो फर्स्ट राउंड रहता है ना टेक्निकल में, मतलब मेरा जितना हम्म इंटरव्यू है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड में वो सारी चीजें पूछती है, सारी मतलब सारी, जितनी भी हम्म टीपी के रिलेटेड आती है। अगर उसमें आप कॉन्फिडेंट हो, आप आंसर कर पा रहे हो, तो वो सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे ना। तो सेकेंड राउंड में जो एक्चुअल वर्क है वहां पे, उसके रिगार्डिंग ज्यादा हम्म क्वेश्चन पूछते हैं फिर। अच्छा, हाँ ओके, और मीन्स उनको उनके बस, फील्ड पे। हाँ हाँ, उनके फील्ड पे जो वर्क रहेगा उसके हिसाब से वो हम्म करते हैं। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू या थैंक यू थैंक यू। या वेलकम। बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं पा रहे। अरे हिंदी में बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात कर लो, पूछ लो जो पूछना है। ओके, वन मोर थिंग फॉर या प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन जैसे प्रैक्टिकल सर तो सिखाते ही है सब कुछ प्रैक्टिकल, तो वो आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, लाइक मीन्स? हाँ हाँ, वो कैसा रहता है ना, लैपटॉप आपका कॉन्फ़िगरेशन सही से चाहिए, मतलब रैम वगैरह सब चीज़ें। तो ये हम्म इसके बाद मैंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया मेरे लैपटॉप में खुद के, और प्रैक्टिस करना चालू किया था। तो सेकेंड जो मतलब सबका अलग अलग रहता है, कोई अमीर है कोई गरीब है जो जिसका कुछ जैसा है उसके सिनेरियो के हिसाब से आप लैपटॉप, आपको लैपटॉप चाहिए चाहिए जिसमें आप 16 GB तक ले सकते हो। और उसके बाद आप हम्म खुद प्रैक्टिस, अभी भी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो वो भी मुझे बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो लेकिन घर पे जाके भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो ओके। मैं, हाँ जो भी कमांड, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे अगर कुछ भी गलत चल गया ना तो पूरा मतलब हम्म सब चला जाएगा। तो उन्होंने मुझे ये बहुत पहले दिन से मुझे बता रहे हैं कि कुछ भी मतलब ऐसा कॉपी करके मत रखो, ये चीजें छोटी मोटी चीजें रखो। ये कब पता चलेगा, हम प्रैक्टिकल करेंगे तब, क्योंकि हम्म ये चीजें थ्योरेटिकल नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये भी पूछा था कि पहले दिन, दूसरे दिन पूछा था कि गार्बेज कॉपी क्या होता है। तो ये एकदम मतलब ये कुछ ऐसा चीज है, रॉकेट साइंस भी नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसमें क्या करते हैं कि जो हम पुट्टी में क्या होता है, पुट्टी में मोवेक स्ट्रीम में, कि हम जब राइट क्लिक देते हैं तो वो कंटेंट पेस्ट हो जाता है जो हमने कॉपी किया हुआ था। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो उन्होंने बोला कि मुझे गार्बेज कॉपी कर लो, मतलब कुछ भी ऐसा नंबर 0 1 या कुछ भी ऐसा एम्प्टी लाइन कॉपी कर लो। फिर उसके बाद राइट क्लिक भी हो गया, तो ऐसा कुछ स्क्रिप्ट वगैरह नहीं चलेगा जो कि पहले किसी ने किया होगा शट डाउन का वगैरह कुछ नॉन प्रोडक्शन पे। तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए, ये सब प्रैक्टिकल में ही पता चलेगा। तो इसकी वजह से हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा उसके बाद जो भी हम सीखे हुए हैं वो सीखा हुआ हमने वहाँ पे प्रैक्टिस करना। तो ये प्रोडक्शन पे वगैरह तो नहीं कर सकते ना हम, या फिर एक्चुअल जब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना। तो हमें खुद का लैपटॉप वगैरह तो चाहिए चाहिए, इन्वायरमेंट सेटअप सब। ओके। और जिसका पॉसिबल भी नहीं हो रहा है तो वहाँ पे लर्नर टीम तो हेल्प कर रही है ना, मतलब जो एक्सेस वगैरह दे के वर्चुअल एक्सेस। लेकिन उसमें क्या होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत डिले प्रोसेस, मतलब उसमें डिपेंडेंसी आ जाती है कि हमारा वाईफाई उनका वाईफाई कनेक्शन बैंडविड्थ वगैरह सब, ये चीजें आ जाती है। तो खुद का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये भी सजेशन रहेगा कि आपको प्रैक्टिस करना है तो आपका खुद का बना लो, जो भी इन्वायरमेंट बनाने वाले हो। ओके।
हेलो जितेंद्र। और यस हेलो। आप कुछ ओ, सॉरी भाई थोड़ा क्रॉन हाँ जॉब्स के बारे में बता सकते हो क्या क्या उसमें पढ़ना है? हाँ, क्रॉन जॉब्स के बारे में देखो, सर ने भी एक वीडियो शेयर किया हुआ था। एक्चुअली क्रॉन जॉब का सर ने भी नहीं लिया था ये सेशन में, तो मैंने वहां से पढ़ लिया था कि क्रॉन जॉब में देखो एक्चुअली कमांड रहती है। उसमें कमांड्स रहते हैं। देखो क्रॉन टैब में कमांड्स पूछते हैं कि हम कौन से कमांड यूज करते हैं। तो क्रॉन टैब हाइफन आर रहता है, जो कि नहीं करना होता है, मतलब रिमूव होता है उससे। फिर क्रॉन टैब हाइफन ई रहता है, जिसमें हम एडिट करते हैं क्रॉन जॉब्स। तो फिर ओके। ये सब, हाँ, एडिटिंग के कमांड सारे आने चाहिए। फिर उसके बाद हम क्रॉन टैब में जो हम सेल स्क्रिप्ट करके रखते हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा हुआ होता है। ठीक है। तो हमें हम्म। क्या करना होता है कि क्रॉन टैब गुरु करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाके हमें देखना होता है कि हमें कौन से मिनट पे, कौन से आवर पे, कौन से डे पे, कौन से वीक पे, ये सारी चीजें वहां पे है क्रॉन टैब गुरु में। वहां से हमें पिक करना है कि हमें कैसा फॉर्मेट चाहिए। वो फॉर्मेट डाल के उसके आगे हमें वो स्क्रिप्ट का पाथ वगैरह देना होता है। तो वो ऑटोमेटिक क्रॉन क्रॉन जॉब शेड्यूल हो जाता है। तो ये थ्योरेटिकल हो गया। प्रैक्टिकल में हमें आपको वहाँ पे कौन से कमांड हम यूज करते हैं क्रॉन टैब पे, वो देखने होते हैं। फिर जो हम क्रॉन टैब गुरु में जाके जो हम शेड्यूल करते हैं ना, डे टाइम वगैरह, वो देखना होता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए क्रॉन जॉब में। इजी है, ओ- कुछ हार्ड नहीं है। फिर उसको पहले थ्योरेटिकल समझ के प्रैक्टिकल कर लो, हो जाएगा आराम से। ओके। ये आपको कभी ये क्वेश्चन पूछा है क्या, आर्मन बैकअप अगर शेड्यूल है क्रॉन टैब से, अगर इन केस ऑफ एनी फेलियर आ गए, जॉब फेल हो गए, हम्म तो उस केस में आप क्या हम्म। करोगे? कुछ ऐसा सिनेरियो फेस किए हो? ऐसा मुझे एक नहीं क्वेश्चन ये, पूछा था इंटरव्यू में। अच्छा, आप आपका एक्सपीरियंस कितना है? मैं 3 साल दिखा रहा हूँ। दिखा रहे हो मतलब आपका हुआ, मतलब आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना? मतलब करंट आईटी में ही हूँ, टेक्निकल बैकग्राउंड में, बट अच्छा, डिफरेंट टेक्नोलॉजी में। ओके, तो आपको 100% पूछेंगे, मुझे तो ऐसा कुछ पूछा नहीं था। हाँ, लेकिन मुझे अगर पूछा ऐसा था। कुछ, हाँ, तो ऐसा कुछ मतलब मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आरमैन का स्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा है, तो हमें क्रॉन क्रॉन टैब ओपन कर, मतलब जो स्क्रिप्ट है वो ओपन करनी पड़ेगी आरमैन की। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो L1 का काम नहीं रहता है, L2 L3 का, मोस्टली L3 का रहता है। वो स्क्रिप्ट चेक करेगा, स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम है या फिर स्टोरेज का कुछ प्रॉब्लम है। सॉरी, सॉरी। तो जो कुछ स्टोरेज का प्रॉब्लम है या फिर कुछ बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, ये सब चीजें देखी जाती है। अगर सब कुछ ओके है, तो उसके बाद हम क्रॉन जॉब चेक कर, मतलब क्रॉन जॉब तो पहले चेक करते हैं, लेकिन क्रॉन जॉब में अगर कुछ डेट टाइम में अगर प्रॉब्लम हुआ है तो वो होता है। लेकिन वो किसी ने गलती से कुछ चेंज किया होगा तब, या किसी ने क्रॉन जॉब रिमूव हटा दिया होगा तब प्रॉब्लम आएगा, वरना तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके। मोस्टली अगर मुझे लगता है आएगा प्रॉब्लम तो स्टोरेज का आएगा बैकअप के टाइम पे, जो कि डेली का टास्क रहता है डीबीए का, कि चेक करना होता है रोज कि जो बैकअप जहाँ पे हो रहा है वो माउंट माउंट पॉइंट अटैच है नहीं है, वहाँ पे स्टोरेज है नहीं है, कितना परसेंटेज है, वो डेली का टास्क रहता है डीबीए का चेक करना। बाकी ओके, तो फिर स्क्रिप्ट ये अगर हम ऑटोमेटेड, हाँ, ये ऑटोमेटेड मॉनिटर स्क्रिप्ट हम रहेगी ना। ओईएम से करते हैं? एक्चुअली जहाँ पे होगा ओईएम तो है, यहाँ पे ओईएम नहीं है, यहाँ पे पुट्टी पे सेशंस क्रिएट किए हुए हैं। ओके। या हेलो जितेंद्र। हेलो। वैसे आपका अभी अभी स्टार्टिंग फेज में हो तो आपका जॉब क्या है आपका अभी नाम बता फिलहाल? सकते हो आप? आपका प्रफुल्ल। नाम? अच्छा, प्रफुल्ल, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो अभी आपका काम क्या है, अभी स्टार्टिंग फेज में हो ना आप? स्टार्टिंग में तो एक्चुअली कैसा है ना, अभी यहाँ पे मैं L1 हूँ। तो L1 के हिसाब से मुझे स्टार्टिंग में टिकट वगैरह रिजॉल्व करने के लिए सिखाया है यहाँ पे। यहाँ पे जोहो का टिकटिंग टूल है। तो टिकटिंग टूल पे मैं अभी टिकट रिजॉल्व कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट रेडी करके रखे हुए, मतलब किसी यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, यूजर क्रिएट करना है, या फिर कोई लॉक है अनलॉक करना है। फिर उसके बाद जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग मुझे दिया गया है यहाँ पे।
कि सीपीयू कितना है, आइडियल सीपीयू। फिर स्टोरेज वगैरह चेक करना पड़ता है। और यहाँ पे डेटा गार्ड भी है, जो कि लोकेशन यहाँ पे मतलब दूर है, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, बता नहीं सकता। तो वो डेटा गार्ड का गैप वगैरह कितना है वो चेक करना होता है, मॉनिटरिंग। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा वहाँ पे क्रॉन जॉब्स देखने के लिए बोला है कि क्रॉन जॉब्स देखो, कौन से टाइमिंग पे कौन सा बैकअप चल रहा है, किस प्रोडक्शन का चल रहा है, किस नॉन प्रोडक्शन का चल रहा है, आर्काइव लॉग का बैकअप कैसे कहाँ जनरेट हो रहा है। फिर आईपी एड्रेसेस वगैरह याद करना, एसओपीज वगैरह देखना, ये सब मेरा अभी ये 4 दिन में हुआ है। अभी आगे के इसमें अभी नाइट शिफ्ट है, तो नाइट शिफ्ट में जो नाइट के जो जॉब चलते हैं, तो वो उसको मुझे मॉनिटर वगैरह करना है। अगर कुछ अलर्ट वगैरह आए तो उनको जो पर्टिकुलर टीम है उनको अलर्ट करना है। ऐसी चीज़ें मुझे अभी सिखाई जा रही है L1 के लिए। तो आपका जॉब का मतलब नाइट शिफ्ट के जो 2 जॉब बजे। चल रहा है आप बोल रहे हैं एक वो एक जो एक मिनट, है वो एक ऑटो। मिनट क्या, एक मिनट है मुझे जरा, एक मिनट। हेलो, या कंटिन्यू। जो आप बोल रहे हो नाइट शिफ्ट के आपकी जॉब रनिंग है, तो आप जॉब जो रन पे है बोल रहे हो, जो आउटसोर्स से है या किससे है? इनके पास क्या टेक्नोलॉजी है फिर उसके लिए? एक्चुअली मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है, तो थोड़ा सा मतलब नहीं नहीं, मैं एक। आपको ये पूछ रहा हूँ कि ऑटोसिस जैसा हर कंपनी में होता है ना, मतलब मैं एचडीएफसी में अभी वर्किंग पर हूँ, तो हमारे ओके, साइड पे ना ऑटोसिस वर्किंग पर, जिसमें अब मतलब जॉब्स ऑटोसिस चलते क्या हैं होता है मुझे यू मतलब पता नहीं इतना। ऑटोसिस। अच्छा, वो मैनुअल मतलब एक टूल है जहाँ पे आप अपना अच्छा सबका सब जो स्क्रिप्ट्स है ना, स्क्रिप्ट्स, परमिशन, पाथ, और कहाँ से हिट होगी, तो ओरेकल से हिट होगी, एफसी एडमिन से होगी, डीबी से हिट होगी, कहाँ से, वो वैसा सब इसमें लिखा होता है। और वो एक के बाद एक रन होता है, मतलब एक कंप्लीट होगा तो वो उसका कंप्लीशन बता देता है, और उसके बाद वो रन होता है, उसके बाद की स्क्रिप्ट, बाद की स्क्रिप्ट, वन बाय वन रन होता अच्छा। है। तो उसमें हमारे इसमें जैसे आपने बताया कि जॉब्स चलते हैं, तो एक्चुअल बैंकिंग साइड में क्या है ना, जो भी आपके ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए हैं, मतलब प्रीवियस डे के ट्रांजैक्शन, उसको डीबी पर सेव करने के लिए जो रात का समय है ना, यस। 12:30 के बाद से लेके तो सुबह 4 बजे तक वो पूर्ण ऑटोसिस का फ्लो चलता है, जिसमें प्रीवियस डे के ट्रांजैक्शन कंप्लीट होके डेटाबेस पर सेव हो जाते हैं, और अगले दिन के लिए न्यू ट्रांजैक्शन के लिए डेटाबेस ओपन होता है, जिसमें स्टार्टिंग में कट ऑफ लगता है, उसके बाद ईओडी लगता है, एंड ऑफ द डे, मतलब लास्ट डे जो था ना प्रीवियस डे, उसका एंड ऑफ द डे, हाँ। यहाँ तक ट्रांजैक्शन डीबी पर सेव होंगे। उसके बाद बीओडी लगता है, ये कि अगले दिन के ट्रांजैक्शन ओपन होने के लिए उसके अंदर का मतलब अगले दिन के ट्रांजैक्शन, मतलब आज कल 9 तारीख है, तो आज अभी बीओडी चलने के बाद 10 तारीख के ट्रांजैक्शन होंगे, फिर 10 तारीख के ट्रांजैक्शन 11 तारीख में ईओडी में चलेंगे, फिर बीओडी चल के फिर 12 तारीख के लिए ओपन हो जाएंगी। तो वो ऐसा ऑटोसिस का हमारा टूल है, तो बैंकिंग सेक्टर में ओके ये ओके, गॉट मेन इट। टूल है हमारा। तो अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पे मतलब अभी बता ही देता हूँ, मतलब मुझे इतना ये कॉन्फिडेंशियल है या नहीं पता नहीं, क्योंकि मुझे अभी तो 4 दिन हुए हैं। ईटीएल हाँ ईटीएल जो रहता है ना, ईटीएल ईटीएल हाँ, चलता है रात ईटीएल, में। हाँ ईटीएल हाँ, भी है तो हमारे मतलब इसमें। हाँ ईटीएल है, मतलब मुझे लगा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, इसीलिए मैं बताना रहा था। क्योंकि क्या है ना, 4 दिन हुए मुझे यहाँ पे आके, तो इतना सारा मतलब मुझे पता, बहुत बहुत कुछ पता चला है यहाँ पे आके, लेकिन ऐसा हाँ। नहीं कि मैं सब बता दूंगा यहाँ पे। नहीं, सही है, सही है, इसलिए मतलब आपकी बात ऐसा सही है। कुछ नहीं, ये मुझे ये पूछना था, ये कॉन्फिडेंशियल वगैरह नहीं है ना कुछ ऐसा नहीं ईटीएल? नहीं, कॉन्फिडेंशियल नहीं है ये कैसा है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो सब जगह पे प्रोवाइडेड है, मतलब हाँ जिसने लाइसेंस लिया है ना ऑटोसिस का, तो उसके यहाँ पे सब जगह पे वो है, और आप अपने भी पीसी पे करके देख सकते हैं। लेकिन आपके पास जॉब ही हाँ नहीं हाँ है, स्क्रिप्ट्स नहीं है, तो आप नहीं हाँ बना हाँ सकते, हाँ, क्योंकि हर एक जॉब चलने के लिए वो करेक्ट। चाहिए ना
उतने ट्रांजैक्शन वो चाहिए, उतना ETL का, डेटा चाहिए, कनेक्शन चाहिए। हाँ यस, वो ETL का चलता है, वो नॉन प्रोडक्शन का चलता है रात में कुछ, मतलब जो हाँ हाँ। वहाँ पे डेवलपर्स, हाँ डेवलपर्स वगैरह है ना वहाँ पे, SQL वगैरह, हम्म, तो उनके जो डेली के टास्क वगैरह वो रात में ये करते हैं, नॉन प्रोडक्शन से ETL से कुछ बैकअप लेते हैं वो। हाँ हाँ हाँ। वो हाँ तो वो नाइट में। उसके स्क्रिप्ट्स तैयार रहते हैं पूरे के पूरे, वो जो रात में रन होते हैं, जिसकी वजह से आपके हाँ कुछ शेल्स रहते हैं, वो हाँ हाँ पर्टिकुलर शेल्स में से वो एक एक एग्जीक्यूट करने के बाद वो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन से हो जाते हैं। जैसे कि अपना, आपको अभी पता चलेगा बाद में, कासा का अकाउंट है हाँ एक, हाँ कासा मतलब कासा चलेगा आपका, मतलब पूरे के पूरे उसके हाँ। ट्रांजैक्शन जो रहेंगे वो कासा के थ्रू जाएंगे। तो ओके। वहां से उसे होंगे ना डीबी पर, तो उसके लिए पर्टिकुलर शेयर रहता है, उसकी स्क्रिप्ट रहती है। वो स्क्रिप्ट उसके बाद, वो जो स्क्रिप्ट है उसके उसमें अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में डुप्लीकेट आया या कोई भी ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम आया, तो उसमें प्रॉब्लम होता है या कोई एरर देता है। ओके ओके। मतलब वेरियस हाँ टाइप्स के एरर है, एक ही एरर नहीं है, ये तो बता रहा हूँ, कभी कभी आता है ऐसा। हाँ 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 हाँ। उसमें सेल भी अगर लेट हो गई तो क्यों लेट हो गई, क्या हुआ ऐसा, वो तो वो सब बहुत बहुत सारी चीजें रहती है इसमें। तो अच्छा, ऐसा है, वही लेकिन तो मैंने अभी तक कैसा है। मेरी नाइट नाइट तो हाँ, अभी लगी नहीं है, अभी मंडे से शैडो में हूँ 4 दिन। तो बंदे हैं अच्छे, मतलब उन्होंने बहुत दिन बहुत टाइम से नाइट वगैरह किया है वहाँ पे। तो मुझे उन्होंने बोला है मुझे कि एक बंदे ने तो मुझे डायरेक्टली बोला है कि एक नाइट में अगर तू मेरे साथ रहेगा ना, तो पूरा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। तो मतलब 4 दिन शैडो में रहूंगा तो उसके बाद सब सीख जाऊंगा, मुझे लगता है नाइट में तो इतना जॉब्स वगैरह नहीं रन होता है। तो सब एक्चुअल, चीजें हैं अभी, मतलब फ्रेशर ही हूँ मैं, तो मतलब इतना पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ अभी। नहीं, मैं मेरे प्रेशर नहीं हूँ, मैं मेरा जॉब चल रहा है। तो वो नाइट में कैसा है, कुछ होता नहीं है वैसा ज्यादा कुछ, मतलब फेल वेल होता नहीं है, क्योंकि सब सब ऑटोमेटेड है ना, तो उसमें फेल वेल हाँ होता नहीं है। कभी कभी अगर हुआ तो आपके साथ आप हाँ। भी कनेक्ट होंगे और आपके साथ आपके सीनियर भी रात में ही कनेक्ट होना। आप जो बोले ना अलर्ट आना पड़ता, तो अलर्ट होने के बाद आप उनको बताएंगे ना, तो वो कनेक्ट हो ही जाएंगे कॉल रात में। वगैरह। हाँ, हम्म। तो वो ऐसा भी है मुझे तो। बताया था अभी, एक एक्चुअली मैंने मंडे को ज्वाइन किया था ना, उसके दो हम्म दिन हम्म बाद कुछ ETL पे प्रॉब्लम आया था रात को। हम्म तो हम्म सीनियर को इन्फॉर्म करके कुछ रिजॉल्व किया था उन्होंने, क्या किया था एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं बताया, क्योंकि पूछने से वो क्या है ना, थोड़ा सा हाई लेवल टास्क है, तो मैं थोड़ा हम्म। लो लेवल का टास्क सीख रहा हूँ अभी थोड़ा, तो इसीलिए उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया अभी तक। जिन्होंने सॉल्व किया ना, अगर वो आपकी टीम में है ना, तो आपको, आप उसको दूसरे दिन सुबह पूछ सकते हो, वो आपको जरूर बताएंगे। और ये पूछना बहुत हाँ। जरूरी है, क्योंकि मैंने यस। चालू किया तो मेरा, मतलब जो जब पूछा मैंने, तो इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर हो गई कि वो डीबी का वो सेशन वो ब्लॉकिंग पे था, और ये था वैसा था वैसा था, तो थोड़ा तो मेरा ऊपर से गया। हालांकि हम्म। मैं एज अ कंसल्टेंट लगा हूँ मैं, लेकिन मुझे वर्क अच्छा दिया अच्छा। गया अभी तो डीबी का दिया गया। तो मुझे ओके। डेटाबेस पसंद आ गया, तो मतलब मजा आ गया उसमें, डेटाबेस में। अभी पुट्टी में से, सब मैं पुट्टी में से ही करता हूँ, तो उसमें मजा हाँ आने हाँ। लगा। तो मैंने बोला ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी सीखना है। तो जब मैंने डिटेल अच्छा किया तो फिर अब मैं सर तक पहुंच गया, तो मैं अभी अभी लगाया हूँ। तो अच्छा अच्छा वो अच्छा। हिसाब से मुझे भी कनेक्ट करना है, लेकिन अभी 3 साल होने के बाद करूंगा मैं। मेरा तीन अच्छा, चार आपका एक्सपीरियंस कितना है? मेरा अभी ये 2 साल का हो गया मेरा, अभी तीसरा अच्छा। साल मेरा चालू है, जिसमें मुझे, ओके। मेरे पास यूएटी सर्वर है। अच्छा। यूएटी सर्वर पे मैं पता वर्क नहीं। करता हूँ, जिसमें मैं जॉब रन करता हूँ। पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्शन पे एरर आता है ना, प्रोडक्शन अच्छा। पे कभी कभी एरर आया, तो प्रोडक्शन का डाटा यूएटी पे रिस्टोर करके वो जॉब पर्टिकुलर मैन्युअली एक एक जॉब रन करके, स्पेशल एक एक शेल रन करके, वो शेल का फिर पीछे बैकएंड में क्या स्क्रिप्ट है वो देख के, उसको स्क्रिप्ट को ओएफएसएस जो होती है ना, ओरेकल फाइनेंस सिस्टम सर्विसेज, जो हाँ ओरेकल हाँ की टीम होती है, वो कनेक्ट करती है। हाँ फिर हाँ उनके हाँ साथ कनेक्शन करके अगर स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम है या हाँ हाँ उनका हाँ, वो जो भी। डेटा प्रॉब्लम है, तो वो उसको फिक्स करने के बाद वो शेल फिर से लगा के, उसके बाद और हाँ उसका एसक्यूएल सेशंस देख के आ रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, जॉब रन ऐसा ऐसा देख के पूरा, और वेटिंग सेशन है, या कभी कभी आपके डीबी पे होता है कि आपका डायरेक्टरी नहीं है, या आपका कोई एक ये उसका जो मैनुअल ये मिलता है ना, क्या कहते हैं उसको,
पर्टिकुलर जॉब रन करने के लिए कुछ ना कोई टेबल चाहिए होता है, ये टेबल चाहिए उनके लिए, डिपेंडेंसी होती है, वो डिपेंडेंसी है कि नहीं, बराबर। वो सब देख देख के वो मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं वहां तक पहुंच गया हूँ अभी। तो मुझे ऐसा है कि मैं पहले कंसल्टेंट था, लेकिन मेरे को वर्क हाँ। ऐसा डीबी का मिल गया है, तो मैं उसके लिए कोई व्यू, लेकिन मुझे ऐसा है कि एक्सप्लेन नहीं करते आता। मैं कर सब यस लेता यस। हूँ, मैं फ्लैशबैक भी कर लेता हूँ डेटाबेस को, मैं अपना क्या बोलते हैं उसको, फ्लैशबैक करके इंपोर्ट भी ले सकता हूँ, एक्सपोर्ट भी ले सकता हूँ, सेशन भी देख सकता हूँ, डीबी में जॉब भी कैसे चल रहा है वो सब भी देख सकता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन ही नहीं करते आता कि ये प्रोजेक्ट को मैं बताऊँ कैसे कि मैंने ये किया है। करेक्ट करेक्ट। वो यही चीज मैंने मतलब अभी स्टार्टिंग में बता रहा था कि मतलब मैं भी खुद ये इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ खुद में, और सबको बता रहा हूँ कि जैसे आपको ये बोल रहे हो ना कि मुझे ये सब आता है लेकिन ये चीज नहीं आती है, तो ये हम्म, क्वेश्चन लेके अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे ना तो आ जाएगा। हम्म, वरना हम सीधा यही सोचेंगे हाँ मुझे डीबीए बनना है, डीबीए बनना है, मुझे रैक सीखना है, ये सीखना है, वो तो ऊपर का है। अंदर की हम्म, चीजें जो क्वेश्चन लेके हम सीखेंगे ना तो ऑटोमेटिक हम्म, समझ में आएगा, ये मुझे बता। तो जैसे हाँ आप मतलब बोल रहे हो कि मुझे, हाँ हम्म, व्यूज वगैरह आप बोल रहे हो कि व्यूज पता नहीं है, ये पता नहीं है, हम्म, मतलब ये हम्म, आइडिया नहीं है, तो पर्टिकुलर हाँ मुझे ये काम करना है तो मुझे कौन सा व्यूज लगेगा, ये अगर सोच के हम हम्म, पढ़ेंगे ना तो ध्यान में रहेगा। हम्म, अगर हम बोलें कि हम्म, मुझे सारे व्यूज पढ़ने हैं तो कंफ्यूजन हो हम्म। जाएगा। वही ना, $V ये मैं सेशन थोड़ा लगता है, $V डेटाबेस लगता है, या $V हाँ डायग्राम डस्पर इन्फो हाँ लगता है, वही भी बोल रहे हैं हाँ ना। हाँ, ट्रेस हाँ हाँ। फाइल देखना तो है, डीबी में क्या हो रहा है, क्या चेंज मारा है, वही ना। तो ये सब सारे सारे व्यूज एक साथ पढ़ने से अच्छा है कि कौन सा तो सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे ब्लॉकिंग सेशन चेक करने हैं, मुझे हम्म, ये कौन सी क्यूर ब्लॉकिंग सेशन में है, ये है सब चेक करना है, तो कौन सा यूज यूज करना पड़ेगा उसके हिसाब से अगर उसमें से स्टडी कर लिया तो कंसेप्ट क्लियर हो हम्म। जाएगा। ऐसा मैं नहीं, थोड़ा वही ट्राई कर रहा हूँ। वही समझना है, मुझे भी समझना है वो। हम्म, अभी आपका 2 पॉइंट्स आपने क्लियर कर दिया। मैं हाँ। आर्मैन पे करता हूँ मैं ये सब, लेकिन मुझे आर्मैन के अच्छा बारे में मालूम नहीं है, वैसे इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ तो। अच्छा, आपने कोर्स लगाया ना यहाँ पे? अब भी लगाया मैंने, अब बीच में से, वो भी अच्छा नहीं, एसक्यूएल हो लिनक्स जाएगा क्लियर। हो गया है। लेकिन हाँ, वही हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि है क्या 100% है। हो जाएगा। अंकुश सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और हम्म, आप खुद भी स्टडी कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। मैंने भी वैसे ही किया हाँ, चलिए, थैंक यू। है। थैंक यू सो मच। और अभी थोड़ा सा एक जो मतलब जो हमारे कुछ ऑफलाइन के बनते दिख रहे हैं मुझे इसमें, अगर किसी को कुछ फ्रेशर के लेवल के क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लो। मैं भी फ्रेशर ही हूँ लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस जैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, ऐसा नहीं कुछ। बिल्कुल हेजिटेट मत करो, पर्सनली भी कॉल कर सकते हो, लेकिन इसमें पूछोगे तो थोड़ा आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। अरे बोलो भाई। हेलो। भाई आपने कितना टोटल इंटरव्यू दिया? मैंने, ये मेरा 5th इंटरव्यू था। पहले 4 मतलब कौन सा क्लियर हुआ, कहाँ से क्लियर होना चालू हुआ? एक्चुअली क्लियर मतलब ये 5th वाला ही क्लियर हुआ है मेरा। जो पहले के 4 इंटरव्यू हुए थे उसमें फर्स्ट फर्स्ट राउंड हुआ था। एक मतलब अभी एक कंपनी अभी तक मतलब होल्ड पे ही बोल सकते हो, अभी तक उनका कुछ सेकंड नहीं आया था। उन्होंने मुझे बोला था कि वी विल लेट यू नो करके, बट हम्म। वहाँ पे मतलब हमारे लर्नोमेट के 2 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, एनवीकॉन करके, तो शायद से मतलब आगे कंसिडर कर सकते हो, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन बाद में कुछ आया नहीं, तो पकड़ लो कि मेरे 4 इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया, ऐसे समझ लो, चारों भी। वो 5वां सिलेक्शन हो गया। ये लेकिन सब इंटरव्यू सामने से अच्छे। कॉल आया नौकरी से? हाँ 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 हाँ, सब सब सामने से कॉल आया। मैंने मतलब एक एक इनवीकॉन का था जो कि हमारे एचआर ने सपोर्ट किया था, एनवीकॉन का, ओके। मुंबई लोकेशन का। हाँ तो उन्होंने मतलब इस पे भी डाला था, ग्रुप पे भी, और मैंने भी उनको रिज्यूम वगैरह दिया, तो एचआर ने कनेक्ट करके मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया था। हमारे जो ऐश्वर्या मैम है और ओके। आकांक्षा मैम है, उन्होंने शेड्यूल किया था। फिर वहां पे जाने के बाद थोड़ा मतलब वहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, जो मतलब सारा नहीं बता सकता, लेकिन शायद से आगे हमारे यहाँ से जा सकते हैं वहाँ पे बंदे, लेकिन अभी इतना काम नहीं है वहाँ पे डीजे का।
लेकिन वो फ्रेशर ओके लेवल का है, एक्सपीरियंस लेवल का नहीं है वहाँ पे। तो ये हुआ एक्चुअली था। मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अभी मैं इन्फोसिस में हूँ। बट ओके। 15 डेज से मुझे एक भी कॉल नहीं आया नौकरी से। 15 डेज के पहले आ रहे थे, बट पता नहीं हाँ क्यों हाँ, 15 दिन से एक भी कॉल नहीं आया। वो मेरे साथ भी हुआ था एक्चुअली। क्या क्या चीज होती है ना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप मतलब बहुत सारे मेरे ऐसे भी बंदे हैं जो मुझे बताते हैं कि भाई डेली 200 कंपनी में अप्लाई करो, और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि डेली एक दो या पांच पांच कर लो। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे कर रहे हो। मैं तो खुद ऐसे करता था कि सुबह मॉर्निंग में उठता था, मेरा मतलब आदत है मुझे, पहले आदत थी, अभी यहाँ पे आने के बाद थोड़ी बंद हो गई। मॉर्निंग में उठने के बाद फ्रेश होने से पहले लिंक्डइन पहले ओपन करना है। वहां पे एटलीस्ट 5 लोगों को, ओरेकल डीबीए के 5 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। जो रिक्वेस्ट आए उसको एक्सेप्ट करना है। कुछ ओपनिंग्स वगैरह देखने हैं, उसमें 10-15 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं। 10-15 मिनट में जितने भी अगर आपका एक्सपीरियंस 3+ है, तो आप 3+ के मतलब 0 to 1 3 तक आप एक्सपीरियंस वाले पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जेडी वगैरह नहीं देखना है उसमें। अगर एक आध कंपनी आपको अच्छी लग रही है, भाई हाँ ये कंपनी थोड़ी अच्छी लग रही है, तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के जेडी का रख लो, लेकिन अप्लाई कर लो पहले। और ओके डेली का ये काम करना है, डेली का काम करना है। एक दिन भी छुट्टी नहीं लेनी इस चीज में। इसमें बिल्कुल भी कुछ ये नहीं करना है। अगर आप प्रिपेयर्ड हो अच्छे से, तो आपको डेली अप्लाई करना है। डेली फॉलोअप भी लेना है कि कौन से कंपनी से कुछ रिप्लाई आया है, कुछ मेल आया है, ये चेक करना है। और उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा, अगर एक्स्ट्रा टाइम ले निकाल सकते हो आप, आधा घंटा 1 घंटा, तो आप जो मतलब, अरे देखो डीबीए का जॉब तो सारे कंपनी में रहता है। जहाँ पे कंपनी है वहाँ पे डेटाबेस तो रहेगा ही रहेगा। कौन सी भी कंपनी ले लो, जहाँ पे ऑटोमेशन है या सॉफ्टवेयर वगैरह, तो ऐसी कंपनी ढूंढो जो बड़ी कंपनी है या मिड लेवल कंपनी है। उसकी वेबसाइट पे जाओ, जो जहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। वेबसाइट पे जाने के बाद जब जो जॉब्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे करियर्स का सेक्शन, उसमें जाके देख लो डीबीए का कुछ है तो अप्लाई कर लो। वहाँ पे भी अप्लाई करोगे ना, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ज्यादा कंसिडर किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो एचआर है वो डेडिकेटेड एचआर रहते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है, तो एटलीस्ट उसको रिस्पॉन्स तो करते ही करते हैं। नौकरी पे कैसा होता है, नौकरी पे तो कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं, ऑलरेडी एचआर के सामने भी रिज्यूम्स वगैरह पड़े रहते हैं, ये सारी चीजें होती रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, उसमें थोड़ा सा हमारा चांस कम हो जाता है। लेकिन जब हम वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो थोड़ा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं हम लोग। ओके लेकिन अप्लाई अप्लाई दोनों दोनों जो आपको, ये 2 वे तो मुझे पता है, और कुछ वे रहेगा तो आप भी बता सकते हो मुझे। तो ये 2 वे तो मैंने क्रैक कर लिया है कि ये 2 वे से हमें करना ही करना है। अगर जो उसमें से मैंने बोला कि अगर एक आध कंपनी है जो आपको अच्छी लग रही है, आपने उसका जेडी स्क्रीनशॉट निकाला, फिर बाद में आपने देखा कि ये जेडी है जो मुझसे मैच हो रहा है, तो उसकी कंपनी की वेबसाइट पे भी जाके चेक करो कि वहाँ पे वो पोजीशन है क्या, रहेगी तो वहाँ पे भी जाके अप्लाई करो। और कुछ कुछ मतलब एसेंचर, टीसीएस जैसी कंपनी रहती है, नौकरी पे भी जाने के बाद भी वहाँ पे लिंक रहता है कि आप वेबसाइट के थ्रू कर लो, तो वहाँ पे तो हम्म डायरेक्टली आप वेबसाइट में चले जाते हो। लेकिन जो कंपनी रहते हैं सीधा अप्लाई कर दिया, छोड़ दिया, वहाँ पे वो एचआर कब देखेगा नहीं देखेगा वो नहीं समझ में आ सकता ना ऐसा। इसीलिए जितना हो सके उतना आप 15 मिनट निकाल के, रोज 15 मिनट निकाल के, नौकरी पे, लिंक्डइन पे, इंडीड पे भी अगर टाइम मिला तो इंडीड पे भी कर लो। इंडीड से कुछ कॉल नहीं आते, लेकिन इंडीड पे भी देख लो, क्योंकि उस पे भी आप देख सकते हो ना नोटिफिकेशन की ये कंपनी का ओपनिंग है, तो आप वहां से अप्लाई करके वेबसाइट पे जा सकते हो। मोस्टली आप ओके ये ट्राई करो कि हाँ जो कंपनी आपको अच्छी लग रही है वो उसके वेबसाइट पे जाके भी आप चेक करो। यही बता। और कोई क्वेश्चन है? हेलो जितेंद्र, अक्षय बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। एसक्यूएल का क्वेश्चन पूछते हैं क्या इंटरव्यू में? एसक्यूएल का मुझे तो अभी तक कुछ पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं अगर आप मतलब डिपेंड है कौन सा पोजीशन है, पोजीशन ओके के हिसाब से पूछ सकते हैं। हाँ, L1 के लिए तो ज्यादातर मतलब मुझे अभी तक एसक्यूएल का कुछ ऐसा पूछा नहीं, क्वेरी वगैरह। ओके हाँ, जहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग का काम आएगा ना, स्क्रिप्टिंग का, हाँ तो वहाँ पे एसक्यूएल पूछेंगे, 100% पूछेंगे, तो मुझे आइडिया है।
ओके हेलो हेलो। हाय जितेंद्र, प्रीति हियर। हेलो। हाँ बोलो। आपका ये 5th इंटरव्यू था, तो 4 इंटरव्यू में मतलब आपको ऐसे कोई कौन से क्वेश्चन है जो हमें और भी अच्छे से करने की जरूरत पड़ेगी सर ने जो सिखाया उसके अलावा? के अलावा आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर सर ने पढ़ाया जी। है, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन आर्किटेक्चर में मेमोरी में भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारे सेक्शंस है जो कि हमें पता है। मतलब हम क्या बोलते हैं कि बाबा रीडू लॉग बफर, फिर हम्म। ये जो हमारा ये जेपीजी में जो सारे कंपोनेंट रहते हैं वो वाले बता सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी और सारे हैं जो कि जावा पूल रहता है, लार्ज पूल रहता है, या फिर हाँ। हाँ, तो ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, उसका काम क्या रहता है। फिर उसके बाद प्रोसेसेस भी जो हमने मतलब बेसिक बेसिक जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमें पता है, चेक पॉइंट, पीमॉन, एसमॉन, या फिर डीबी राइटर, लॉग राइटर वगैरह सब पता है, लेकिन उसके अलावा भी प्रोसेसेस है जो आरमैन की प्रोसेस वगैरह है, या फिर एसजीए की जो है, पीजीए की, एसजीए की जो प्रोसेस ऑल अदर भी है, वो पता होनी चाहिए आर्किटेक्चर पे। फिर अगर हमें पर्टिकुलर मेमोरी में कितना स्पेस है, कितना फ्री है, क्या है, परसेंटेज वगैरह देखना है, तो उसके व्यूज वगैरह पता होने चाहिए आर्किटेक्चर के हिसाब से। फिर जो हमारे डेटा फाइल्स है उसमें डेटा फाइल्स में क्या क्या फाइल्स रहती है, फिर पासवर्ड फाइल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर ऐसा भी मुझे क्वेश्चन पूछा था सिनेरियो बेस कि अगर हम्म। आपके पास अ, ये नहीं है, टीएनएस फाइल नहीं है, मतलब जो दूसरे लोकेशन पे है, या फिर आपका ये जो है लिस्टेड फाइल अवेलेबल नहीं है या फिर करप्ट हुआ है, तो आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, कैसे करोगे, ये सब ऐसी चीजें भी पूछी जाती है। तो अगर अच्छा, और ऐसा भी ऐसा कुछ जो आपको लगा कि मुझे और भी करने की जरूरत है, मतलब 4-5 व्यूज इंटरव्यू में? टेबल्स, व्यूज। व्यूज देखो और आपने ओईएम तो प्रिपरेशन कैसे किया, मतलब सर ने जैसे पढ़ाया वैसे ही सेम की प्रैक्टिकली करके देखा, फिर कितना टाइम कैसे कैसे मैनेज किया मतलब? वैसे तो प्रीति आपको भी पता है, आप मेरे साथ थी ऑफलाइन में, तो बहुत सी चीजें ऐसी है कि सर बताते हैं, कुछ सर नहीं बता पाते हैं, कि सर को भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सर बताते हैं उतना ही करना है, हमें क्वेश्चन क्रिएट करने हैं खुद को, हमें क्यूरियोसिटी बढ़ानी है अंदर से कि मुझे ये हम्म। चीज पता होनी चाहिए, डीबीए के एक्चुअल काम क्या है, फिर अंदर क्या चीजें हैं, वो क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे तो वो क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन निकलेंगे, और वो क्वेश्चन लेके आप पढ़ो। क्योंकि आप डायरेक्टली जाओगे, समझ लो एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं अगर आपको मैंने बोल दिया कि जंगल में जाना है, तो आप जंगल बोल के आपको सब चीजें याद आएगी कि पेड़ पौधे, एनिमल्स, पानी, नदी वगैरह सब, पहाड़ बिहाड़ सब आएंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आएंगे। तो इसमें क्या रहेगा कि आपको जंगल में क्यों जाना है, किस चीज के लिए जाना है, आपको ऑब्जर्वेशन के लिए जाना है। तो आपको क्या करना है कि कौन से सेक्शन में जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर के या पेड़ के ऊपर के देखने जाना है, तो मैं उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके जाऊंगा और उसी को देखूंगा। तो ऐसा नहीं कि मुझे बाकी की चीजें देखनी नहीं है, देखूंगा, लेकिन वो उसको ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मुझे वही सीखना हम्म। है। अगर मुझे फिर बाद में 2-3 दिन बाद ऐसा टास्क मिला कि मुझे पानी के अंदर के, मैं पेड़ के अंदर के मैंने एक हफ्ता पूरा सीख लिया, पेड़ के ऊपर कितने पक्षी है, क्या है, उनका आवाज कैसा है, सब ऑब्जर्व कर लिया एक हफ्ता। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में मुझे बोला जाएगा कि पानी के अंदर का देखो, तो मुझे अगर पानी के अंदर के चेक करते टाइम पे मुझे पूछा किसी ने कि भाई पेड़ के ऊपर ये पक्षी है, इसका आवाज बताओ, ये कौन सा पक्षी है, तो मैं बता सकता हूँ। ये चीज है। तो डीबीए के अंदर भी हमें ऐसा ही करना है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बहुत वास्ट चीज है। उसके अंदर मुझे अगर सिर्फ आरमैन का पढ़ना है, तो मैं आरमैन का ही देख के जाऊंगा कि आरमैन का बैकअप पहले तो थेरोटिकल समझ में आना चाहिए। उसके बाद मुझे ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं एक्चुअल बैकअप लेते कैसे हैं, कहाँ पे लोकेट करते हैं, फिर उसका रिस्टोरेशन कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स क्या है। फिर अगर उसमें फिर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं। फिर अगर ये ऑटोमेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये चीजें आरमैन के अंदर आ गई। इसका मतलब ये नहीं कि वो डीबीए के बाहर का है, डीबीए के अंदर का है, लेकिन वो डीबीए का पूरा मतलब उसमें थोड़ी हम लॉजिकल का देख रहे हैं, उसमें थोड़े हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का देख रहे हैं, ये चीजें साइड में रह जाती है। तो एक एक चीजों पे फोकस करके अगर आपने पढ़ और लिया है ना,
तो हम्म हाँ, तो बाद में अगर आर्मैन का पढ़ लिया, उसके बाद आप लॉजिकल या समझ लो आप परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के ऊपर चले गए या फिर क्रॉन जॉब्स के ऊपर चले गए, तो आपको आर्मैन का पूछा जाएगा तो आपको आर्मैन का आ जाएगा जितना आपने ओके। किया हो। और एज अ फ्रेशर उन्होंने आपको अपग्रेडेशन और पैचिंग की पूरी स्टेप पूछी या सिर्फ आता है क्या नहीं नहीं, इतने? आता कुछ है नहीं। का आता है का पूछा था, तो मैंने हम्म डायरेक्टली बोल दिया कि आई डेंट not work on that, but my senior team was observed that and take the notes for my consideration, for my understanding, ऐसे बोल दिया था वो। ओके। हाँ, मतलब थैंक यू सो मच जितेंद्र। ऐसा ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन हम्म इतना भी नहीं कि जो नहीं आता है, क्योंकि एक मैं ये मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि मैंने पहला इंटरव्यू ठीक, मतलब जो यही इंटरव्यू का था, जो पहला इंटरव्यू मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर दिया, अच्छे से दिया। सेकेंड राउंड हम्म में क्या हुआ, मैनेजर लेवल थे मेरे साथ, तो मैनेजर ने पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैंने बता दिया। फिर आपके इंटर्नशिप में क्या क्या एक्टिविटी टाइम पे गलती से परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के बारे में बोल दिया हम्म टास्क में, गलती से, क्योंकि मैंने उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का। तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का पढ़ने की वजह से मेरे दिमाग में एकदम से झट से आ गया और मैंने बोल दिया। उनको वो जरूरी भी नहीं था कि मुझे आना है कि और मुझे पता होना चाहिए, मैंने बोल दिया। तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग यू डिड, तो मैंने बोला एसक्यूएल ट्यूनिंग। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या किया था, तो मैंने गलती से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तो हम्म उन्होंने मुझे बताया कि देखो, ऐसा नहीं कि आपको सब हमें ऐसा नहीं कि आपको सब आना चाहिए, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जितना आपको कॉन्फिडेंस है, जितना आपको पता है, आप उतना ही बोल दो, ठीक है। तो आपको भी ये सब लोगों को, फ्रेशर लोगों को यही ध्यान में रखना है, और एक्सपीरियंस वाले जो जा रहे हैं ना, उनको भी यही बताना चाहता हूँ कि आपको आपको भी सीखना ही पड़ेगा। अगर फेक एक्सपीरियंस लगा के जा रहे हो तो भी ये चीजें हम्म पता होनी चाहिए, बट इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है कि मैंने किया हुआ है। हम्म हाँ, अगर इतना कॉन्फिडेंस दे दिया तो अगर उसने वो काम किया होगा पहले से, मैनेजर ने या एचआर ने, तो वो सीधा पूछ लेगा ना, उसको सब पता होगा, वो तो फ्रेंडली होगा उससे। अगर उसने एक पूछा तो वो झट से पता चल जाएगा कि इसने काम नहीं किया है। तो अगर हम बैड इंप्रेशन पड़ गया तो फिर आगे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है इंटरव्यू में। यही चीज होती है। झूठ भी बोलना है, लेकिन झूठ को भी सच साबित करना आना चाहिए बाद में। ठीक है। ये चीज रहता है। थैंक और यू। सीखना तो सभी को पड़ता है, एक्सपीरियंस वालों को भी पढ़ना पड़ता है, फ्रेशर को भी सीखना पड़ता है, लेकिन फ्रेशर को थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा है। तो मेरा रिकमेंडेशन सबको यही रहेगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आप ले लो। वैसे भी मैं भी इतनी दूर आया हूँ, इसीलिए अपॉर्चुनिटी मिली है, अच्छी है, सीखने मिल रहा है, तो आ रहा हूँ। सभी फ्रेशर को ये बोलना है कि आप ट्राई करते रहो, और जो मिल जाए आप ले लो। सब सब हो हाँ जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा। जितेंद्र, ठीक। आपने हेलो। वो हाँ टीएनएस का जो क्वेश्चन पूछ बताया ना अभी, तो हाँ उसका हाँ। उसका आंसर क्या दिया था आपने फिर? कि नहीं, मतलब अगर आंसर टीएनएस मुझे देने चाहिए तो कैसे करने का? हाँ। नहीं दे पाया था मैं एक्चुअली। उन्होंने पूछा था कि अगर टीएनएस कैसा रहता है, टीएनएस फाइल यूजर की साइड रहती है ना, और हाँ लिसनर टीएनएस नेम्स डॉट और लिसनर जो डेटाबेस के अंदर रहती है। तो हाँ टीएनएस के अंदर हमारा जो आईपी एड्रेस वगैरह रहता है डेटाबेस का, हम्म ठीक है। तो उसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। अगर समझ लो कि टीएनएस फाइल नहीं है वहां पे, तो कैसे कनेक्ट करना है वो मुझे पूछा था, मुझे याद नहीं है। मतलब मैंने तो आंसर नहीं किया था, उन्होंने भी नहीं बताया था, वो मैं थोड़ा देखने वाला हूँ। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हाँ, नहीं ये फाइल वो नहीं है। हाँ हाँ, बराबर है पकड़ लो आपका कि ये। वो। हाँ हम्म, बोलिए बोलिए। हाँ, एसपी फाइल बोलो, कंट्रोल फाइल बोलो, या हम्म, पर्टिकुलर डेटा फाइल का तो कुछ नहीं। डेटा फाइल तो मतलब वो, ये तो नीडफुल है, वो तो बात उसको की तो। बात है, हाँ डेटा फाइल। हाँ। तो कंट्रोल फाइल, एसपी फाइल जो फाइल है, फिर पासवर्ड फाइल, ये हम्म चीजें क्यों होती है, उसमें हम्म फिर वो नहीं होगी तो क्या हो सकता है। फिर हम्म अगर हाँ, अगर हमें कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ये चीजें हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ये जो मैं अभी सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत, जो कि जी रियल जी। टाइम इन्वायरमेंट में इजीली पता हो जाता है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो और एक्सपीरियंस या फिर आप फेक एक्सपीरियंस लगा के जा रहे हो, तो आपको ये पता होनी चाहिए चीजें।
वो जो आपका फिक्स सवाल था ना चीज है। टीएनएस वाला, तो हाँ हाँ उन्होंने जो पूछा तो उसका जवाब है, मुझे पता है, मैं हाँ हाँ बता दो। कि अगर टीएनएस डॉट ओरा में आपकी टीएनएस एंट्री नहीं है हाँ हाँ तो आप डीबी से कनेक्ट ही नहीं कर सकते। उसका यही करेक्ट। जवाब मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक आप टीएनएस एंट्री वो होस्ट नेम और वो सब देते नहीं उसको, पोर्ट नंबर और होस्ट नेम, तब तक हम्म वो एंट्री नहीं हो सकती, वो कनेक्ट ही नहीं कर सकते आप डेटाबेस को। और लिसनर को भी मालूम ठीक नहीं पड़ेगा कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, अब मतलब ज्वाइन ही नहीं होगा वो। उसके लिए वो पैरामीटर चाहिए ही चाहिए, टीएनएस डॉट ओरा में टीएनएस एंट्री चाहिए ही, जिससे आपका आपकी डीबी की रिक्वेस्ट, मतलब आपकी एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट डीबी पर जाएगी। ओके ओके। ये ऐसा जवाब है, वो हो ही नहीं सकता विदाउट टीएनएस, आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते डीबी को। टीएनएस से लिसनर पे जाएगा, मतलब लिसनर से डीबी क्वेश्चन, पे जाएगा पर्टिकुलर। हाँ नहीं आप बोल रहे सही है। क्वेश्चन मतलब मैं आई गेस मैं कुछ मैंने गलत बोल दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। उसमें पासवर्ड फाइल का मतलब टीएनएस और पासवर्ड फाइल का कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन पूछा था मुझे। ये पासवर्ड फाइल तो मतलब सब लोग बोलते हैं कि पासवर्ड फाइल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पासवर्ड फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसी हम्म। चीज के लिए शायद से कुछ। हाँ मतलब अगर डेटाबेस के बाहर से कुछ लॉगिन वगैरह करना हो तो पासवर्ड फाइल कुछ इंपॉर्टेंट रहती है, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, मतलब इतना क्लियरली याद नहीं है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि टीएनएस फाइल्स, लिसनर की फाइल्स, फिर जो हमारा पासवर्ड फाइल्स, ये फाइल्स के बारे में पता होना चाहिए कि होगी तो क्या क्या उसका यूज है, नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा, ये चीजें पता होनी चाहिए, ये बता रहा था। पासवर्ड पासवर्ड फाइल आपका इन सब डेटाबेस के जो पासवर्ड्स है, एक्चुअल यूजर हाँ कनेक्ट करता है उसके लिए चाहिए। फिर भी हाँ यूजर हाँ कैसे कनेक्ट कर रहा है तो वो पहले पासवर्ड फाइल तो डेटाबेस हाँ को जब ओपन करते हैं तो उसके लिए चाहिए होती है। बराबर। जब ओपन करेंगे वो बात, पहले टीएनएस है, उसके बाद पासवर्ड फाइल है, और हाँ एसपी फाइल से तो आपको मालूम ही है क्या होता है। हम्म। तो वैसा है उसका सिनारियो, ओके जितना ओके मुझे थैंक पता यू। है इतना। हाँ थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? अभी लंच टाइम हो गया मेरा, कुछ क्वेश्चन हो गए तो बता दो, या फिर आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर और लिंक्डइन का प्रोफाइल डाल देता हूँ ग्रुप पे, वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ चीज़ें मेरे से अगर गलती से कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बड़बड़ किया हुआ, या फिर कुछ चीज़ें कुछ गलत बता दिया हो तो माफ़ कर दो, और मुझे थोड़ा सा सजेशन भी दे सकते हो, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, फ्रेशर हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो 1 मिनट में हम खत्म करते हैं, और फिर बाद में कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, वन टू वन। ओके, हेलो थैंक यू। जितेंद्र। हेलो। हाँ, मैं अक्षय बात कर रहा था। एज ए हाँ फ्रेशर बोलिए। वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है? हाँ केटी तो सभी का होता है, एक्सपीरियंस वालों का केटी कम रहता है, फ्रेशर का केटी थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो। ओके लेकिन ये तो है कि भाई ऐसा नहीं कि सब लोग सिखाने बैठे हैं यहाँ पे, खुद को बहुत सीखना पड़ेगा। ओके। हाँ खुद को बहुत मतलब खुद को सीखना पड़ेगा, बाकी तो नसीब अच्छा रहेगा तो एक बंदा मिल ही जाता है कंपनी में कि जो थोड़ा सा स्पून फीडिंग वगैरह करता है। लेकिन हमें स्पून फीडिंग खुद से नहीं करवाना है। अगर कोई ओके कर रहा है तो करने दो, लेकिन हमें खुद से ये करना है कि हमें खुद से सीखना है, खुद से सब ट्राई करना है, ये ओके। ध्यान रखना। भाई ठीक मेरा है। एक लास्ट क्वेश्चन है। आप हाँ भी कौन जवाब बोल दे रहा है? सकते हो और जो भी लोग हैं वो भी हेल्प कर कौन सकते हैं कौन थोड़ी। कौन 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 बात कर अक्रम रहा है मतलब वो? अक्रम। अच्छा हाँ बोले। हाँ बोले मेरा 90 डेज नोटिस पीरियड है, तो क्या मैं पेपर डाल के फिर जॉब फाइंड करूँ, क्योंकि मुझे कॉल्स नहीं आ रहे। बोले। नहीं ये इतना मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये आईटी में नहीं था, तो आईटी में तो मेरा अभी पकड़ लो 4 ही दिन हुआ है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर पाओगे तो लास्ट के 1-2 महीने में आप इंटरव्यू के लिए मतलब आप कर लोगे, तो आप पेपर डाल सकते हो। मतलब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका 90 डेज है, मतलब 3 महीना है नोटिस पीरियड, तो आप पेपर डाल के जो लास्ट के 2 महीने में आपको अप्लाई करना है।
क्योंकि अगर आप पहले अप्लाई करोगे तो कुछ कुछ जगह पे इमीडिएट ज्वाइनिंग वगैरह रहता है। अगर आपको आपको यस। पॉसिबल आपको पॉसिबल रहेगा तो आप ये कर सकते हो कि एक महीना जो 3 महीने के ये है ना, तो पहले महीने में आप फुल फुल प्रिपरेशन कर दो, फुल डेडिकेटेडली। कुछ अप्लाई वगैरह मत करो। सिर्फ आप लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप करो, रिज्यूम बिल्ड करो। रिज्यूम 10 बार चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिंक्डइन पे 10 बार चेंजेस करो। लेकिन एक महीना पूरा प्रिपरेशन लिंक्डइन और रिज्यूम का करने के बाद दूसरे लास्ट के 2 मंथ में आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं कि आज अप्लाई किया आज कॉल आ गया, टाइम लगता है थोड़ा सा। आज अप्लाई किया तो मुझे तो एक मतलब जिस दिन मैंने अप्लाई किया था उसके दूसरे दिन से कॉल एक दो आना शुरू हुए थे। फिर उसके बाद इतने कॉल आना शुरू हो गए कि मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि सबको एक्सपीरियंस चाहिए था और मैं तो ठान के बैठा था कि मुझे फेक एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। जो मेरा है मैं बताने वाला था। तो मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल आते थे कि जो 3+ वाले थे। तो मैंने ऐसे भी किया था कि सब पे अप्लाई किया था। मेरा एक्सपीरियंस एज अ ओरेकल डीबीएस 6 मंथ्स का ही था इंटर्नशिप। फिर भी मैंने 3+ तक मैंने अप्लाई किया था। क्यों किया था? क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस 2.9 का था। तो मैंने वो भी कंसिडर करके 3+ का एक्सपीरियंस किया। तो एचआर का कॉल आने के बाद बता देंगे कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये है, वो है। अगर आप फेक लगा रहे हो तो बढ़िया है, तो फिर शेड्यूल हो जाएगा। मेरा तो बहुत सारे इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुए थे। तो ये कर सकते हो आप कि एक महीना प्रिपरेशन कर लो, रिज्यूम लिंक्डइन जो प्रोफाइल प्रोफाइल का शेड्यूल कर लो। फिर उसके बाद लास्ट के 2 महीने में आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। फिर हो जाएगा आपका लास्ट के 30 डेज 15 दिन में आपका हो जाएगा इमीडिएट ज्वाइनिंग वगैरह जो कुछ रहेगा। ओके भाई। थोड़ा सा आप कौन सी कंपनी में हो? इन्फोसिस में। अच्छा, अगर आपके सीनियर्स वगैरह थोड़ा बहुत अच्छे रहेंगे तो देख लो थोड़ा सा। लास्ट लास्ट के 15 दिन में थोड़ा सा ये कर लो, दूसरे कंपनी से ज्वाइन वगैरह कर सकते हो उनको 15 दिन दे के। 15 दिन थोड़ा सा मतलब लेट ये करके, या सर्व करना ही पड़ेगा आपको ऐसा कुछ। ओके। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको कि करना ही पड़ता है पूरा 90 डेज या कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं वगैरह? नहीं, मैंने बात कर लिया मैनेजर से और लीड से, तो बोलते हैं पॉसिबल नहीं है, ओके, नहीं कुछ कुछ सब कंपनी करना ही करती है, मैंने पड़ेगा। सुना है। हाँ, कुछ कंपनी करती है, लास्ट के 15 दिन थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती है। नहीं, अगर वो मैंने आप पूछ इमीडिएट लिया, ज्वाइन। बात कर लिया, बट बोलते हैं पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी बता ठीक है, नहीं कोई सकते, बात। तो रिस्क नहीं ले सकता कैलकुलेशन आप मैं। नहीं, बराबर है। वैसे तो नहीं करेगी कोई भी कंपनी। वैसे अगर आप एक्चुअली, ऐसे बीच पे छूट जाओगे तो रिलीविंग वगैरह प्रॉपर नहीं होता है ना, सारी चीजें हाँ हाँ, फ्लो प्रोसेस एक्चुअली वगैरह ये रहता है। डिसीजन पे इसलिए आया है क्योंकि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा नोटिस पीरियड की वजह से। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि सारे कंपनी को इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए। हाँ नहीं भी अगर उनका उनका प्रोसेस भी 1 2 महीना 3 महीना भी होगा ना, फिर भी वो इमीडिएट ज्वाइनिंग ही डालेंगे। हाँ, इमीडिएट पता ज्वाइनर है ही आपको? आ रहे, पता नहीं क्यों। हाँ, नहीं डालते। अब अभी देखो ना, एसेंचर का भी इमीडिएट ज्वाइनिंग डाला था, लेकिन उनका प्रोसेस कम से कम 1 महीने के ऊपर है। हाँ ठीक है। हाँ, उनका पहला शेड्यूल होता है, फिर मेल आता है, ये होता है, वो होता है, फिर नेक्स्ट वीक में होता है। कुछ कुछ टाइम पे मेरा तो 2 बार रीशेड्यूल हुआ था एसेंचर का। क्योंकि पहले टाइम मैंने ज्वाइन किया तो एचआर कुछ बिजी थी क्लाइंट मीटिंग में, तो उन्होंने बोला कि बाद में करो। तो ये डिले होता रहता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक महीना पूरा प्रिपरेशन कर लो। तो जो लास्ट के 2 महीने में आप प्रिपरेशन करके मोस्टली वर्चुअल देना स्टार्ट करो। तो आपको कैसा टाइम भी मिल जाएगा, आपका प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। फिर लास्ट के 1 मंथ में आपका हो जाएगा, मुझे गारंटी है। आप मतलब ओके। आपको एक्सपीरियंस वगैरह है सर? ओके भाई। या यहाँ पे और कोई है जो एक्सपीरियंस है और अभी जॉब ढूंढ रहा है, बट उसको भी कॉल नहीं आ रहे 10-15 दिन से, कुछ मार्केट की वजह से इशू है, इसी मुझे ही ऐसा हो रहा है। अभी तो क्योंकि मैं ये सोचा कोई कि बोल नहीं रहा इंटरव्यू है लेकिन। प्रिपरेशन के लिए 30 डेज कर देता हूँ नोटिस पीरियड नौकरी पे, तो हाँ, कॉल्स आएंगे, इंटरव्यू शेड्यूल करवाऊंगा, बट कॉल्स ही नहीं आ हंड्रेड रहे परसेंट 30 डेज होने के बाद भी। आप आप कुछ भी कर सकते हो मैन्युअली, बट उससे क्या होगा ना, आपका जो एक्चुअल है वो नहीं बदल पाएगा ना। आप इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन आपका होगा नहीं, ये बता रहा हूँ। क्योंकि आप नोटिस पीरियड पे हो, तो लास्ट के 2 महीने में आपका 100% आप कर पाओगे। तो ओके। आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे मैनेज कर पाओगे ये सब चीजें। ठीक है भाई। हाँ, ठीक है। मैम,
हेलो ऐश्वर्या मैम. Yes, Jitendra. Yeah, we can conclude that session. Okay. Okay. Yeah. Thank you so much, Jitendra, for your valuable time. Yeah, thank you. Welcome. I hope everybody got the amount of Ma'am, your voice is echoing. Hello. Hello. हाँ मैम. Yes. So thank you so much, Jitendra, for this valuable session. I hope सारे सबको आपका सेशन बहुत अच्छा लगा और जितना टाइम चला है लाइक ऑलमोस्ट इट्स बिन 2 आवर्स. सो आपने बहुत अच्छे से सबको ये पूरा बताया. थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन. Yeah, welcome and thank you so much for all also to join this session. अगर आपको कुछ ऐसा मतलब कुछ लगा कि मैं कुछ ज़्यादा बोल चुका हूँ या फिर कुछ गलत बोल चुका हूँ तो मुझे आप पर्सनली बता सकते हो. ठीक है. और कुछ कनेक्शन का वगैरह रहेगा तो मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ मेरा नंबर और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी डाल देता हूँ. या यू कैन गाइस मतलब सब एक दूसरे के साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड रहो. एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो अकॉर्डिंगली. यस. चलो थैंक यू Thank you so एवरीवन much, फॉर ma'am. ज्वाइनिंग. Thank you. थैंक यू. Thank you, Akansha ma'am. Thank you, Aishwarya ma'am. Thank you, Learnomet team. Thank you, Ankush sir, for this. या श्योर. Bye, ma'am. Bye, all.